creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art, at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. It is match number 13. I request extra player. Please be reported here of both the teams, and I request extra player of Saptami Warriors. Please to be reported here. ದಯಮಾಡಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. After winning the toss, captain of Saptami Warriors, they are decided to field first. Once again, I request 12th man, extra player. Extra player, any member of Saptami Warriors, please be reported here. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಪ್ತಮಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Umpire, please note extra player of Saptami Warriors. Yes. Yes, reported. Thank you. Murli, the great supporter of cricket, is here. So please be seated. Yes, everything is ready here. Thank you very much. The jersey number 10 is the bowler, and I need to see which bowler. Name please. Ratan. Yes, Ratan Kamath is the bowler, and in front of him is the opening batter. Vasant Naik will go into face first delivery. Right above the wicket. This time, little bit play, try to play the room to play the shot, and they went with the stroke. They went for a single then, and the batsman completed single. Vasant is off the mark with the single, and that brought Dr. Vinod to strike here. Coming back to two teams, Saptami Warriors, they lost 2 matches of their league, and Spark Udupi, they lost 1, they won 1. That means out of 2 bats, this time is a juicy full toss, and Dr. Vinod, no way to missing the opportunity to dispatch that down to deep extra cover boundary for 4 runs. Of course, officially played, but quite deliberately played. Dr. Vinod knows that where the 2 fielders is outside the circle, there is no protection has been given in the offside region. So that means an easy pick here for the batter like Dr. Vinod. Just delivered that one over the top of the infield, and he got a good start, a positive start there from Dr. Vinod. 4 without loss of any wicket. 5 lead action. Ratan. This time Dr. Vinod coming down the track looking for the single, quick single, but the bowler is tried his level best to make the run out. But I think just you can see that the body language of Dr. Vinod doesn't look like the age will go into matter here, but he's athletic always. Absolutely, the quick run and the fantastic running between the wicket there from Dr. Vinod to complete that single. Ratan this time, lovely delivery, wicket keeper behind the stump, going up, and even the umpire has got no hesitation in his mind. Shriniket raising his finger, lovely short pitch delivery. Look at that one in replay. The ball almost climbing onto the batter, and batsman tried to play that one off the toes, tried to cut that one away from his body, got outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the side making no mistake at all. The first wicket is back into pavilion of Spark Udupi. It's a 6 for the loss of 1 wicket,
And a very good breakthrough there from Ratan. Excellent short pitch delivery, quite deliberately bowled by Ratan, seeing the batsman is looking for a big shot on the offside region. And again Ratan bowling away from us. Right arm over wicket balls, beautifully bowled and equally batted there by the batsman, new batter. Just taking that one in the pull. Of course, the low full toss in that occasion. So the new batter, just in number 25, the managed to pick the single here. With that single, scoreboard now moves on to 7 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Ratan bowling away from us to Dr. Vinod. This time Dr. Vinod shouldering his arm. You know exactly, ball pitched outside the line of leg stamp. Might be the bowler is not happy with the decision, but seeing that the little bit ball is getting extra turn, and one from the over which is called by umpire. And Ratan once again back to his bowling mark, having a big smile in his face. Coming down the track, but not like a placement, chance of run out, but it's not a quick throw from the fielder. It's not the kind of throw we're going to get the result for that. It's almost an unrummed throw, but needed to let a quick work, isn't it? Ball went straight to the hands of ex-cover fielder, because Dr. Vinod drives that one powerfully, and the ball went quickly to that fielder, just number 20. Look at the ordinary throw from the fielder. It's not the kind of throw is required to get a big wicket of Dr. Vinod. Needed a quick work. Quick throw, but unfortunately, Saptami cricketers just missing the golden opportunity to get the big wicket here. And Dr. Winner, look at the way he's running between the wicket. Even though he know exactly there is no chance at all for any run, but he's just steal that run from that extra cover region fielder. So first over completed. After completion of first over, Spark Udupi has got 9 runs by losing 1 wicket. The bowler has been introduced from the professional career end. Deepak Kamath brought into attack. Saptami Warriors desperately wanted to win the match. They lost 2 matches. They doesn't want to continue that streak what they got. They need to break that the streak of losing 2 matches, but for that they needed to perform very well. Again, the first ball, slow over one, and negotiated very well by Dr. Vinod. Just quickly realizing this is a slow ball, the back of line delivery is bowled by the bowler in the negation, Deepak, and is a very experienced campaigner. Dr. Vinod quickly realizing that that ball is almost, you can see that in international cricket you can call that a knuckle ball. It's not so easy to bowl in cricket balls that we call is a season ball, but in a lot of experiment we can see in the tennis ball cricket. The bowlers tends to do a lot of experiment, because it's very difficult to survive, isn't it? When it's all we can see that the rules and regulation is favoring the batter rather than the bowler. Especially the small format of game, it is not so easy for the bowler to get away from. This time not really a full-hearted stroke, but I think the fielder in the deep mid-wicket region takes the catch. The unfortunate dismissal, isn't it? The way the ball is going towards the mid-wicket region, if you put a little bit extra effort to get some power behind the stroke, definitely there's going to be a 6. And instead of hitting the ball, he's just helping it down, isn't it? He got a very good timing in that stroke, no doubt at all, because ball went almost towards the deep mid-wicket, just inside the boundary. The fielder takes the catch, but little bit power along with the timing, definitely will going to get the distance, but unfortunately he's back into pavilion. They lost 2 wickets here. It's a 10 for the loss of 2 wickets. So new batsman in is Vivek, walking towards the middle. This is a scenario we can see that from each and every team, wickets are tumbling because they wanted the run, isn't it? When you're playing a 5 overs format of games, no other substitution for getting the runs. They need to look for a run. By doing that, the wickets are tumbling. And Saptami Warriors, definitely they got a good start in this match. Picked up 2 wickets.
Deepak bowls. This ball is in there. Opportunity of catch there, but the ball is landed safely between bowler and the extra cover region. And it's a 10-11 on the board now for the loss of 2 wicket. Lucky escape here for the batter Vivek. This again the bowler is bowling good job here. He's bowling slower one from the far end. Right arm over the wicket, lovely delivery. Again the slower one, and Dinesh appreciating. Of course, Dr. Vinod is appreciating that ball because he knows the backup plan delivery is a wrong one there from the bowler, and it defeats Dr. Vinod's bat. It's not so easy. Right arm over the wicket, off the back foot, pulls that one beautifully down to mid-wicket region, but just for a single. He's a very good puller of the ball. If you see that Dr. Vinod's technique of pulling the ball, he's almost standing in a deep in the crease. Once it looks like he will go to hit the wickets. That very close to the stumps, isn't it? And by going that much of using the depthness of the crease, pulling the ball not so easy. And he's got a different technique of getting the runs. And for it very difficult for the ball. This time hammering it down. What a shot! Just to stand and delivered Vivek in that occasion. And Dr. Vinod appreciating that stroke. Why not? Why not? This is a slower one again from the bowler, but this time our batsman is almost ready for that. You know, exactly observing in the non-strikers and what kind of bowler, what kind of delivery is bowling. And this time you know exactly the bowler will go into ball the slower one. He's just waiting for the ball to coming to bat, and it's the right time. That the flow of the bat is absolutely tremendous. That's why the ball got the distance. After completion of over number 2, it's 18 for the loss of 2 wicket. Look at that. That's what I'm talking about. The cricket, the 5 overs per minute is not really related to the bowler, but it's a batter. Just one delivery, all the efforts which is gone in vain. That 5 very good deliveries bowled there by the bowler. The ball by Deepak in the far end, but all that we can see that the ball efforts are gone in vain because of one big shot which came from the bat of Vivek, and they got what they really wanted in this particular over. 18 means 9 runs per over, and 45 plus the similar run rate, the projected score for Spark Udupi. Deepak brought into attack. Lovely deliveries to start with. Of course, the ball came in half volley. The batsman, Dr. Vinod, they are always very good in that particular kicking stroke. That was extra cover drive, but this time he's not really expecting that much of half volley, and that's why he's a little bit late to react to that stroke. Ball went very quickly to the hands of wicketkeeper Deepak. The Dr. Vinod off the back foot again. The way that he's getting that ball from getting that ball to his bat is outstanding, isn't it? It's a well pitched up delivery, extra bounce as well, but he's tackled with this bounce very well. He knows that there is no cover point inside the ring. There is a deep cover point. He's got a huge gap between backward point and short extra cover, and he picked up a single for that. Deepak again. Right arm over the wicket to Vivek. Oh, beautifully ball. Perfect one in the occasion. Defeating everything. Everything in the sense, once the ball defeats his bat, then defeats a wicket behind the stumps as well. Then little bit excitement behind the stump, but not a confident appeal from bowler and wicketkeeper. And rightly so, umpire Shiniket is not interested. It's a very good delivery in delegation there from Deepak. So far he's bowling very well. Bowling away from us. Right arm over the wicket to Vivek. Vivek again shuffled across the line. Swings at one, but not really getting the distance. I'm already mentioning about the shot selection is going to be a key when you're playing in a UCG cricket ground. And just I'm mentioning about the dimension of this cricket ground is concerned. You are choosing longest part of the ground towards the mid wicket. And that's why even the Vivek hits that one firmly right from the middle of the bat. Nothing much wrong with the stroke, but something wrong with that placement made by Vivek. Disappointment end here for Vivek, but it was a very good wicket for the bowler. He is really deserved this wicket because he bowled 3 very good deliveries. That's why Vivek wanted to break the shackle, wanted to get a big shot, but not really getting the distance he's looking for. It's a 19 for the loss of 3 wicket. Deepak again back to his bowling mark. The new batter in
Sunil facing his first delivery. Ooh, that was a fantastic. It's not really too much away from the stumps, I think. Just an inches that ball missed the stumps, isn't it? The batsman wanted to make a little bit room to play the shot. That why he's just moving towards his leg stump to get the extra cover dry. But I think he's very lucky in the relegation as bowler just missed the stumps, the leg stump in the relegation. It's been outstanding and comeback over here for Saptami. After that, 2 expensive over. The over of 9 runs each in the first 2 overs. Then Deepak came in and put some polish stop on the run rate of Sparkle Udupi. This time off the back foot, straight to the answer fieldsman. Opportunity to hit the stump. Opportunity to hit the stump, but he misses the stump. No one dared to collect the throw because bowler, of course, after his follow through, is very difficult for him to collect the throw. That's why the fielder is trying for the shy at the stumps. Ball misses the stumps. Batsman survive. Good over completed there by the bowler Deepak. Outstanding over indeed. The comeback over for Saptami Warriors, and after completion of over number 3, and Sparkle Udupi, the managed to get 20 runs by losing 3 wickets. Two overs remaining. 12 balls remaining, excluding wides and no balls, and wait and see how the Udupi will going to get good score here. Having Dr. Vinod in the other end. Of course, he's got a good start in the first over, but he's not really having that much of strike in the 2 overs. Again, he's out of the strike. The batsman is on strike is Sunil. The bowler Deepak. One more Deepak. He's bowling his second over. He's bowled very good first over, but one delivery he considered a 6, and that's why that a little bit expensive. But captain really has got a faith in his bowling. That's why you're asking him to bowl the second over. The first ball, and Sunil picked up a single down to mid wicket. Not really controlled stroke, but he managed to get the single down to mid wicket. That brings Dr. Vinod into strike now. 11 balls remaining in the innings of Udupi Sparkle. Can Dr. Vinod will going to get going here? This time off the back foot again. Off the back foot pulls that one down to deep wideish long on region. Before the fielder from deep long on to run across to his right to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. So Dr. Vinod is out of the strike now. Sunil back on strike. This time a lovely shot. What a shot. Beautifully played down to deep compound boundary for 4 runs. What a shot there from Sunil, isn't it? So nothing wrong with the line of the delivery. Of course, there's short pitch, but not that much of easy short pitch to deliver. But Sunil quickly realizing there is no deep cover point fielder. He's almost climbing on his toes to get that one down to deep cover point region boundary for 4 runs. Delightful stroke again from Sunil. And score jumped into 26 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Deepak again seeming away from the far end. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Yorker length, but outside the line of off stamp. Sunil once again trying for the extra cover drive. Misses is completely. Good comeback from the bowler's point of view. After that boundary, quickly learning from the mistake not to bowl the short pitch delivery, but you need to bowl some the puller length and Yorker length delivery. And he succeeded. Again, the bowler Deepak. Again, the same mistake is done. This time he didn't got enough timing in that stroke, so that they completed a single for that. Dr. Vinod doesn't want a second because he wanted to deal with some final deliveries of this over. 27 for the loss of 3 wickets. The last time in this over, Deepak. Dr. Vinod is batting on double figure 10. The last delivery of the over number 4, Deepak, from the professional career end. Right arm over the wicket again. Every time you can see that how many times Dr. Vinod trying to pull the ball, but he's not really getting enough short pitch enough to pull the ball towards a square leg. Of course, every time he's looking to play is one of his favorite shot swings. That almost we can see that if in his career he's getting the runs in that which is strongest scoring zone of Dr. Vinod. Between mid-wicket and deep backward square, like he tried to hit the ball. But again, the bowler is doing a fantastic job. Not really giving the width for the batter, Dr. Vinod, to get any kind of big shots. So one more good over is completed. Completion of over number 4.
and searching for the right track. Udupi Sparkle, they got only 28, but last over will go into start of their innings. So far it's a very good comeback here by the bowlers of Saptami, and it's a just in number 7 is brought into attack. Anant, one more very good bowler actually. Anant will go into ball the last over. Dr. Vinod just observing the field. First ball. This time, Dr. Vinod lofted that one. I don't think we'll go to get the distance, but he will go to get the fielder in the mid-wicket region. This is a wicket what Saptami Warriors is searching for a long time. But this time, Dr. Vinod, I think, is a frustration. We can see that this is a result of frustration, isn't it? As he was not really get going. Every time he's trying and trying for the pull shot. But this time as he got a middle of the bat. But already I mentioned about that the distance is not so easy towards the mid-wicket. And one more wicket is back into pavilion. The Doctors a little bit struggled innings which is comes to an end. It's a 28 for the loss of 4 wicket in the over number 5. And last in progress, the new batsman. The Balakrishna Nayak is walking towards the middle. Anand Prabhu will go to continue. This time full toss ball, and batsman now almost hit that one down to deep backward square leg region. One of the fielder from the mid wicket will go into cut it off before the throw coming from the deep. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers under 28 for the loss of a 4 wicket. The last over is in progress, and the batters are in the middle, is trying their level best to get some score here. 30 for the loss of 4 wicket. Anand. Bowls, wicketkeeper fails to collect the ball. Frustration for the bowler, isn't it? The bowler doing a lot of hard work to get to miss the bat of the batter. But when wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, always going to be frustration and painful for the bowler. It's not easy for the bowler to tackle with the final overs when batsmen are looking for the big shots. 31 for the loss of 4 wickets. Sunil back on strike. This time ball is in there. Fielder going back, but not really going to reach the catch. After one bounce he collected. But meantime, both the batters running hard between the wicket to complete that couple of runs. Once again, not that much of good effort there from the fielder. Of course, it's a difficult one to go back and take the catch. Just look at that one effort. It's not quick enough, isn't it? It's not quick enough. Needed some athleticism to get the catch. 33 for the loss of 4 wicket. Again, he went for the reverse sweep. Sunil, it's time ball is hitting his body. And wait for the umpire signal. It looks like it's going to be a leg bite. It's a 34 for the loss of 4 wicket. Saptami so far doing a fantastic job. Even Anant is doing a very good job in this final over. Last delivery of their innings coming up. This time loose delivery. Batsman off the back foot. Cuts that one down to deep backward point region before the failure from the deep. It returns the ball. He has a chance of run out, and out is a call from umpire. And a couple of runs to finish the over number final. And the total score is a 36. And set a target of 37 to win the match. Looks like Murali he's got a little bit happy pace, satisfied with the effort of the bowlers. But I think they needed some effort from the batting side as well. It's not job which is completed. Of course, the bowler completed a good job. It's not so easy to restrict the opposition team like Udupi Sparkle for just 36. I think it's a great effort there from the bowlers of Saptami Warriors, but needed some hard work. One more big effort which is required for the batters of Saptami Warriors to break their streaks of losing the match. The last 2 matches, they must win match here for team Saptami Warriors. Wait and see the strategy, the game plan there from Saptami Warriors, and wait and see how Udupi Sparkle will go into win this match, and wait and see how well they're going to ball and how well they're going to restrict their opposition from the 37
35, little bit correction. 35 is the total score. 36, which is going to be a target. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art. धन्यवाद सतीश. So 37th the target for Saptami Warriors, set by Spark could be batted first. They managed to score 36 runs in the stipulated 5 overs, and now the target 37 set for them. First ball of their innings is now coming up. Extra bounce for the batsman, and extra bounce for the batsman, and the last moment it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. तो पहली गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है और गेंदबाज इस वक्त विघ्नेश भट्ट गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. दीपक एच माफ कीजिए विघ्नेश भट्ट बल्लेबाजी करते हुए, राहुल पई गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं. दीपक एच नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राहुल पई बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद की लाइन को भापते हुए बल्ले को हवा में उठाते हुए गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका. रन काउंट स्टार्टेड नाउ फॉर देम, and now they are one without loss in the first over for Saptami Warriors. और जहाँ तक Saptami Warriors का सवाल है, इस वक्त इस मैच को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है, और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. टिप्पा का करनी चाहिए रहती हुई अंतिम गेंद. The last ball, the ball kept low at the last moment, and it went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run.
तो जहां तक सप्तमी वॉरियर्स का सवाल है, मैं फरमा रहा था सप्तमी वॉरियर्स को इस बात पे जीत दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका अगर उन्हें इस श्रृंखला पे अपना अस्तित्व बरकरार रखना है। तो ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती हुई, स्टेप आउट करते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त करते हुए गेंदबाज बाएं हाथ तो ओवर द विकेट एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, सफल होते हुए अंतिम क्षण में गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास किया था, पहले ही सफल होकर रिवर्स शॉट के प्रयास में इस वक्त खड़े हो गए थे लेकिन अंतिम क्षण में इसे देखते हुए गेंदबाज ने फुल टॉस गेंद फेंकी और गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, रिवर्स शॉट खेलने के प्रयत्न में चूके और गेंद सीधे उनके लगभग जांगों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन पिलाके से नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ राहुल पई इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार धीमी गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स अ टीज कपल फॉर द चेस फॉर द फील्ड, इट माइट बीन कंसिडर्ड ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस। और इससे पहले कि जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ही जस्ट स्मैश्ड दैट वन थ्रू द ऑफसाइड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल at the last moment between mid off and extra cover and because of that he gets a couple run for that stroke। 2 रन बल्लेबाज और टीम प्राप्त करते हुए और इन 2 रनों के साथ विघ्नेश भट्ट का खाता खुल चुका है और कुल रन संख्या 3 रनों पर पहुंच चुका है। रिवर्स शॉट इस बार गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की दीवार पर गेंद टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, just played that one with a twisted bat and finds the gap as well between Gully and the third man and because of that he's got a boundary for that। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त खेला जाता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से और निस्संदेह यहां पर गेंद की लाइन को पहचानते हुए गेंद को विद अ ट्विस्टेड बैट इस वक्त खेल दिया था बल्लेबाज विघ्नेश भट्ट ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6-7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सो स्टीडी स्टार्ट What we are telling is स्टीडी स्टार्ट, सतर्क भरी शुरुआत इस वक्त कर चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद सप्तमी वॉरियर्स 37 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन जोड़ चुका है पहले ओवर के समाप्ति के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर चेजिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 37 in 5 overs, सप्तमी वॉरियर्स but a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board, yet to lose at any wicket. So let's straight away coming back to the equation. 37 minus 7, that is 30 runs more. They have to score for victory. आरके स्ट्राइकर्स कैप्टन आणि इंडो सुपर वॉरियर्स कैप्टन टॉस आहे का स्टेज आगे 30 runs now they have to score for victory in remaining 4 overs and the asking run rate is now gone up to exactly 7.50 runs per over। जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी तब रिक्वायर्ड रन रेट था 7.40 रन प्रति ओवर और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके हैं। अब आस्किंग रन रेट कुछ हद तक बढ़ चुका है, 7.40 से बढ़कर 7.50 पर आकर रुक चुका है और गेंदे इस वक्त बाकी है 24 रन बनाने 30 और देखना यह कि इन 30 रनों को बनाने के लिए सप्तमी वॉरियर्स के बल्लेबाज किस तरह की रणनीति यहां पर इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी में। तो गेंदबाज द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक कि अजय नायक का गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडर, मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद, फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन ठीक 20 गज के दायरे के पास तैनात। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार दिस इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, नो इन फैक्ट इट टेकन, इन फैक्ट आई थिंक जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, इट्स अ 6। स्ट्राइकर्स कैप्टन कई असले टॉस आहे सो आरके स्ट्राइकर्स taken by not the fielder but one of the spectators who sit at long on area and that is in a 6 declared by a firmly struck and just look at this in the replay। एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड देयर, ये गेंद थी, देखिए किस तरीके से फुल टॉस गेंद और इस गेंद को उछाला था मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करते हुए लॉन्ग ऑन पर और गेंद सीधे पहुंचे। हमें यहाँ पर लगा कि शायद फील्डर ने कैच किया है गेंद को, लेकिन वहां पर नहीं। कैप्टन कई असलेरी स्टेज आले का गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑन पर वो गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुके हैं 6 रनों के लिए, 13 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट ये गेंद इस बार दिस इज गॉन मेनी माइल्स, इट्स अ बिग consecutive success for the batsman और इन दोनों छक्कों की बदौलत they are raising towards their target। 19 without loss, 18 needed, 22 balls remaining and the equation seems to be a much easier now। 2 छक्के लगातार दीपक के बल्ले से लग चुके हैं, सिर्फ 2 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं 600 स्ट्राइक रेट की औसत से।
He scored 12 runs in just 2 deliveries with a strike rate of exactly 600. Again, इस बार once again much straighter one, and this time it could be taken inside the fence. इस बार गेंद को बीट नहीं कर पाए और लॉन्ग ऑफ पर तीसरे छक्के लगाने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद को दे बैठे और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है. यहां पर बल्लेबाज अपना काम तमाम करने के बाद विकेट देने के बाद पवेलियन वापस लौटते. 3 गेंदों पर 12 रन उन्होंने बनाए. 400 स्ट्राइक रेट किया औसत से. ही स्कोर्ड 12 रन इन जस्ट 3 डिलीवरीज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ रिमार्केबल 400. और यहां पर दूसरा विकेट, पहला विकेट माफ कीजिए, सप्तमी वॉरियर्स को चुका है 19 रनों के योग पर. इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. So still in the overall calculation, it's going to be 18 more runs required. The things getting much easier now for the batsmen of Saptami Warriors. And as far as the victory of Spark Udupi is concerned, they desperately have to come back with a tight bowling at this situation, because the batsmen of Saptami Warriors are just rushing towards their victory at this situation. And let's see what will happening in the remaining over of this match. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 2 लगातार छक्के प्रदान करने के बाद 1 विकेट तीसरी गेंद पर प्राप्त करने में सफल. इस भी तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा. बेहतर गेंद थी. लेग कटर बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 37 द टारगेट. 3 overs टू गो आफ्टर दिस वन. और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. यह गेंद अच्छी, एब्सोल्युटली बेटर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. मच टर्निंग लेग कटर दिस टाइम फॉर द बॉलर. गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो इस वक्त गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए 2 छक्का प्रदान करने के बाद एक बेहतरीन वापसी कर चुके हैं गेंदबाज अजय नायक. और इस बीच डॉट गेंद और इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति. 19 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. 3 लगातार डॉट गेंदे गेंदबाज ने फेंकी 2 छक्का प्रदान करने के बाद. 4 लगातार डॉट गेंदे कहना पड़ेगा. तो 1 विकेट तीसरे गेंद पर विकेट प्राप्त किया था. चौथी डॉट, 5वीं डॉट और छठी गेंद भी डॉट थी. तो सो 4 consecutive dot balls bowled by the bowler, and he ends the over 2 overs 19 for the loss of 1 wicket. Exactly 9.5 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. And let's straight away once again coming back to the equation. 37 minus 19, that means 18 more runs now they have to score for victory. 18 गेंदे 18 रन चाहिए विजय के लिए. रिक्वायर्ड रन रेट 6 रन प्रति ओवर. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है. द बॉलर ब्रॉट इनटू द अटैक फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड ही इज नाउ मेकिंग सम फील्डिंग एडजस्टमेंट्स. विनोद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जो फील्डर थे उन्हें इस वक्त बुला लिया गया है 20 गज के दायरे के अंदर. गली क्षेत्र पर एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद. मिड विकेट को इस वक्त पीछे भेजा जा रहा है. डीप मिड विकेट पर शॉट फाइन लेग इस वक्त तैनात. और इस वक्त सामना करते हुए विघ्नेश जो कि 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. और डॉक्टर विनोद नायक गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं. ओवर की पहली गेंद फुल टॉच, फुल किया. दिस इज गॉन many miles. In fact, I think just we have to wait for the umpire signal. It's a huge one. तो जिस तरीके से उन्होंने बल्ले पर गेंद को कनेक्ट किया था तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था कि गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पार करेगी. और ये छक्का यहां पर जुड़ चुका है. और विनोद नायक की गेंदबाजी पर ये छक्का इस वक्त जड़ चुके हैं. विघ्नेश 12 रन बन चुके हैं. 12 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा और इस बार प्लम इन फ्रंट. Just shuffling across the line. Just wanted to repeat the same thing. This time he can't succeed. The ball stuck to his leg and his leg shown clean in front of the stumps, and that is the wicket number 2. Leg before wicket, and that is the end of the batsman. Vignesh the man dismissed, and now they are 25 for the loss of 2 wickets. Is the over number 3 in progress. Just 12 to get now for victory, and 2 overs to go after this one. So the equation shows here 12 of 16 deliveries they have to score for victory. 12 रन चाहिए 16 गेंदों में. और इस वक्त एक बेहतर स्थिति में यहां पर नजर आता हुआ सप्तमी वॉरियर्स. और स्पार्क उडुपी का जहां तक सवाल है इस वक्त उन्हें कमबैक करना है एक बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए. तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. दीपक द नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल to joining Ratan
और विनोद नायक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पहले गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद दूसरे गेंद पर बेहतरीन वापसी करते हुए यहाँ पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं पगबाधा यानी लेग बिफोर विकेट के रूप में। और नए बल्लेबाज को इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रात का वक्त लगभग 10:15 यहाँ पर बच चुके हैं और घने अंधेरे को चीर कर इस वक्त मैदान पर फ्लडलाइट की रोशनी इस वक्त गिरते हुए और इस मैदान को चकाचौंध यहाँ पर करते हुए और इस फ्लडलाइट के रोशनी के तले इस श्रृंखला का 13वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ पैंथर्स सुपर लीग 2023 के अंतर्गत। और अगली गेंद के लिए तैयार। गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, एक्स्ट्रा बाउंस मच स्ट्राइट लाइन, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को फेंकी थी गेंदबाज ने। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहे, एक बार फिर से परिवर्तन के तौर पर कुछ और धीमी गेंद इस वक्त फेंकी थी, धीमी लकटर, लेकिन इस बार गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। जस्ट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। स्कोरबोर्ड स्टेज एट 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 12 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछाला लंगोन पर, गेंद इस वक्त लंगोन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। लंगोन सीमा रेखा के ठीक अंदर इस वक्त फील्डर खड़े हुए थे, गेंद उनके हाथों में पहुंची और आखिरकार उन्होंने कोई गलती यहां पर नहीं की। देखिए किस तरह के से यहां पर हुआ था। लुक एट दिस इन द टीवी मॉनिटर। गेंद को उछाला था, टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लंगोन पर गेंद का इंतजार करते हुए फील्डर और आखिरकार आसानी के साथ उन्होंने कैच को लपक लिया और इशारों से कहा जी धन्यवाद। तो तीसरा विकेट गिर चुका है, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। And now 12 required and the ball is remaining 13 और मैच लगभग बराबरी पर रुक चुका है। अब देखते हैं कि अगली गेंद पर गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। So still some fielding adjustments is going on there at this situation. लॉन्ग स्पेटेड आउटफील्ड और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पटके हुई गेंद, लेग कटर गेंद को स्कूप कर दिया इस वक्त डीप इन विकेट पर गेंद जाती हुई। एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन भी मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है लेकिन थ्रो इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। बल्लेबाज के पास काफी समय था कि वो दूसरे रन के साथ अपने छोर पर वापस आ सके। couple of runs added to the total, it's 27 for the loss of 3 wickets and 3 overs had been bowled. And once again let's straight away coming back to the equation. 10 required, 12 deliveries remaining with a required run rate of exactly 5 runs per over. They have to score for victory and this situation equation seems to be much easier now for Saptami Warriors. तो इस वक्त कुछ हद तक बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से प्रोफेशनल एंड की ओर से। अजय इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रतन। नो नीड टू पैनिक एट ऑल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है। अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और देखना है कि इन बचे हुए 12 गेंदों में बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं और यहां पर देखना है कि गेंदबाज इन बचे हुए 12 गेंदों में कौन सा अस्त्र इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में बल्लेबाज को खामोश रखने के लिए। तो इस बीच नई ओवर की पहली गेंद हमसे दूर वाले छोर से प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अजय, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रतन। ओवर की पहली गेंद सफल हो चुकी है पूरी तरह, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, इट्स गॉट अ बॉर्डर बेंच ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 एंड 9 टू गेट नाउ फ्रॉम 11 डिलीवरीज। और इस बीच रतन एक बार माफ कीजिए कार्तिक प्रभु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो रन्स रोकना इस वक्त बेहद जरूरी बन चुका है इस वक्त गेंदबाजों के लिए। स्पार्क उड़पी के ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, सफल होते हुए पूरी तरह ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली, वाइड का इशारा, 1+1 इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट, इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द थर्ड बट वोंट गेट इट। 1+2 3 runs added to their total, 3 wides added into their total और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, 31 for the loss of 3 wicket. The things getting much easier now for the batsmen of Saptami Warriors. Just 5 to get, 6 to get in fact, 6 to get and 11 balls remain. 11 गेंदें बाकी, 6 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए।
ऐसा कहना पड़ेगा। जहां तक विजय का सवाल है स्पार्क उडुपी का, तो कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। तो इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार था। ना तो बढ़ता विकेट, यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपके थ्रो किया, विकेट चटकाए भी, गिल्लियां बिल्स उड़ाए। गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद, लेकिन इन तमाम विद्यमानों से पहले बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे। One more run added to their total, and with that single run, the scoreboard moving up to 32 for the loss of 3 wickets. 5 to get now from remaining 11 deliveries. और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त कुछ बातचीत वहाँ पर जारी, और आखिरकार कुछ बात करने के बाद दोनों अंपायर्स अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और खेल एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ। तो तीसरे अंपायर के लिए मांग की थी इस वक्त खिलाड़ियों ने, लेकिन खिलाड़ियों के मांग पर तीसरे अंपायर को देना उचित नहीं होता है, खासकर जहां तक क्रिकेट के नियमों का सवाल है। एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस क्रिकेट इज कंसर्न्ड, इवन इट्स डोमेस्टिक क्रिकेट और इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो इट्स अ फैक्ट अबाउट क्रिकेट। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिलीवरी। अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, टॉप एज शॉट फाइन लेग पर, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। तो मैच को इस वक्त समाप्त करना चाहा था छक्के या छक्के के साथ, लेकिन यहां पर गेंद उछालने के बाद उनके टॉप एज पर टकराए और आखिरकार शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा लपक ली गई। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, और 5 रन अभी भी अपने विजय से दूर। 5 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 9 डिलीवरीज। इस विकेट के पतन होने के बावजूद इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आता हुआ सप्तमी वॉरियर्स। 5 रन चाहिए सिर्फ 9 गेंदों पर। तो जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 6 बैट्समैन, और नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। विनोद कामत, द नंबर 6 बैट्समैन, इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर सप्तमी वॉरियर्स, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज अजय नायक की ओवर की अगली गेंद का। ठीक उसी तरह का क्षेत्र रक्षण, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात, जबकि डीप कवर पॉइंट इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास जाते हुए पीछे की ओर, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, हाफ स्टॉप फॉलो थ्रू में अपने पैरों के जरिए गेंद को रोका, लेकिन दोबारा जब तक पीछे की ओर जाकर अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस, और सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए। अगली गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, तो यहाँ पर आक्रामक स्ट्रोक लगाने की कोशिश बार बार करते हुए बल्लेबाज, और अब तक कामयाबी उनके पक्ष में नहीं आई है अंतिम चंद गेंदों में। तो 4 गेंद रन और अभी भी चाहिए विजय के लिए, और गेंदें बाकी हैं 7। 7 balls to go, 4 runs more now they have to score for victory। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद उछाला, and he finished the match in a style with a 6। That's it for this match, and a 6 wickets victory for Saptami Warriors with 6 balls left in their innings, and with that 6 wickets victory, they back the complete points against Spark Udupi in the 13th match of Panthers Super League 2023. So man of the match of this match award goes to the man who performed not with the ball but also in the bat also. And, of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. Sika, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. सप्तमीच्या दीपकाक मॅन ऑफ द मॅच दिवच्याक हेलो चेक विक्की पै नागराज पै थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कृपया आर के स्ट्राइकर्स अपना 12th मैन कमेंटेटर बॉक्स की तरफ भेजिएगा प्लीज आर के स्ट्राइकर्स 12th मैन आर के स्ट्राइकर्स का 12th मैन कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तो पैंथर सुपर लीग 2023 में बैठे तमाम दर्शकों का दोबारा तहे दिल से स्वागत है आर के स्ट्राइकर्स कृपया अपना 12th मैन कमेंटेटर बॉक्स की तरफ भेजिएगा प्लीज जल्दी आर के स्ट्राइकर्स 12th मैन कृपया जल्दी कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं लेकिन कृपया थोड़ा अपना 12th मैन आर के की तरफ से भेज दीजिए पहली गेंद ऑफ विकेट इस छोर से ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और ज्यादा बाहर जिसको बैट्समैन ने जाने दिया अंपायर ने हमारी तरफ घूमते हुए कहा कि वाइड है तो वाइड से रनों की शुरुआत हो चुकी है रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है आरके के कप्तान ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडो सुपर वॉरियर्स के दो बल्लेबाज दो योद्धा जो कि इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं शानदार मौसम है रात के 10:30 और बहुत अच्छा खेल देखने को मिल रहा है कमेंटेटर बॉक्स छोर से हमसे दूर जाते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी बीट कर गई बैट्समैन को और बहुत विश्वास के साथ गेंदबाज ने अपील करते हुए अंपायर की तरफ लेकिन इस अपील को अंपायर ने पुरस्कार नहीं दिया बहुत अच्छी गेंद थी काफी पैनापन था शायद वो ब्लॉक होल में गेंद को डालना चाहते थे और ऐसे में बैट्समैन गेंद को थोड़ा सा पैरों को पीछे की तरफ हटाते हुए खेलने के प्रयास में बीट हो गए लेकिन पुरस्कार गेंदबाज को नहीं मिला ऑन साइड पर दायरे के अंदर 3 खिलाड़ी है स्क्वायर लेग थोड़ा सा बैकवर्ड है मिड विकेट तिरछा रखा गया वाइड रखा गया है मिड ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी मौजूद मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ इस छोर से ये गेंद ऑन साइड पर बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया गेंद बहुत दूर गगनचुंबी स्ट्रोक दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी 6 रनों के लिए PSL 6 रहे
इस छक्के के प्रायोजक है पैंथर सुपर लीग 2023। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिकेत जिन्हें याद दिला दिया। और जबरदस्त छक्के के साथ ही रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 7 पर। कार्तिक की गेंद और विनायक शेनाई ने जिस तरह से आक्रमण किया मानो तमाचा लगा दिया हुआ, उस अंदाज में उन्होंने गेंद को उछाल दिया। इस छोर से कार्तिक योजनाबद्ध तरीके से विनायक के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं हमसे दूर जाते हुए। उनकी गेंद और विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बहुत अच्छी तरीके से इस बार थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए गेंद को कंधों का ज्यादा उपयोग करते हुए पटक दिया गेंद को, और अतिरिक्त उछाल गेंद थोड़ा सा ऊपर उठकर आई और कंधों से थोड़ा ज्यादा ऊपर उठती हुई बैट्समैन ने गेंद को, विनायक ने गेंद को घुमाकर खेलने के प्रयास में वो चूक गए और इतना आसान नहीं था, शरीर के बहुत पास आकर गेंद निकल गई और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। इस छोर से ये गेंद इस बार उछाला हवा में, कैच है, फील्डर पीछे की तरफ जा रहे हैं और कैच कर लिया है। बहुत अच्छा कैच, शानदार कैच के साथ ही पहला विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। बेहतरीन कैच, पीछे की तरफ अपने आप को ले गए, शरीर का संतुलन बनाना था, नजरों को गेंदों में, गेंद के ऊपर टिकाना था, जमाना था, एकाग्रता बनानी थी और शानदार कैच को लपकना था। तो इस शानदार कमाल के कैच के साथ ही पहला बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है इंडो सुपर वॉरियर्स का। और शुरुआत का एक ऐसा बल्लेबाज विनायक शेनाई जो कि आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, वो जबरदस्त छक्का जिस तरह से उन्होंने लगाया उसके पश्चात लगा कि शायद वो अब धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन अचानक कार्तिक ने जिस तरह से योजना बनाई, गेंद को थोड़ा सा मिडलर ऑफ स्टंप की लाइन के आसपास रखते हुए बैट्समैन को मजबूर किया कि वो थोड़ा सा इनसाइड आउट करे या फिर थोड़ा सा शरीर के दूर खेलें, और इस प्रयास में गेंद हवा में रह गई और कवर, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर ने पीछे की तरफ अपने आप को ले जाते हुए गेंद को कैच कर लिया। शानदार कैच, 7 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। नया बैट्समैन जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, श्रीनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं। कार्तिक की गेंद और श्रीनाथ थोड़ा सा घूमकर ऑन साइड पर खड़े हैं, स्टांस रिलैक्स नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा जिस तरह से वो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आक्रमण वो करेंगे। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, बीट हो गए, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और कार्तिक ने जानबूझकर ये पैतरा इस्तेमाल किया कि बैट्समैन को परेशान करने के लिए इनको ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर लंबा करते हुए कर दिया ताकि बैट्समैन ऑन साइड पर गेंद को घुमाकर न खेल पाए। घूमकर ऑन साइड पर खड़े थे और उसके अलावा श्रीनाथ ने गेंद को रिवर्स स्ट्रोक में बदलने का असफल प्रयास किया और चूक गए। विकेट कीपर गेंद को गैदर कर चुके हैं। कार्तिक योजनाबद्ध तरीके से, मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-12 कदमों से वो दौड़ना शुरू करते हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थे, इस बार अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें, ज्यादा बाहर थी, ज्यादा तेज रफ्तार करने के प्रयास में गेंद थोड़ा सा दिशाहीन गई और इसको देखते हुए बैट्समैन हालांकि थोड़ा सा रीच करना चाहते थे, लेकिन वैसे भी पुरस्कार अंपायर दे चुके, उन्होंने कहा कि वाइड है। इस रन के 7 रन बढ़कर पहुंच चुका है 8 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और नेहार स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन की भूमिका अदा कर रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि श्रीनिकेत हमारे साथ अब स्कोरिंग बोर्ड पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। और विकेट इस छोर से इनफील्ड के ऊपर से उछालने का प्रयास किया, कुछ देर हवा में तैरती हुई गेंद, फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े थे, वो पॉइंट की दिशा में मौजूद थे, उनको कवर की दिशा में दौड़कर आना था और इतना समय गेंद नहीं था कि वो हवा में तैरती फिर जल्दी ही नीचे गिर गई और बैट्समैन को 1 रन लेने का अवसर मिला। इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन से 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हो शानदार पैंथर्स सुपर लीग 2023। तो गणेश और श्रीनाथ जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है दोनों बैट्समैन जब एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है, अपने माइनस को प्लस में बदल सकते हैं और एक योजना बना सकते हैं। 1 और 1 11 की कहावत आप वैसे भी जानते हो,
हाँ, वरना मैं समझता हूं कि बैट्समैन अकेला इतने सारे खिलाड़ियों के सामने और दर्शकों के सामने कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है। साथीदार अगर अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तालमेल हो जाए तो बात बनती है और फिर कहीं ना कहीं 1 और 1 11 की कहावत साबित हो जाती है। गणेश नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और श्रीनाथ स्ट्राइक एंड पर हैं। दाएं और बाएं का मुझे लगता है कि शायद कॉम्बिनेशन। दूर वाले छोर से प्रोफेशनल कोरियर बैनर छोर से गेंद को लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अश्वत्थ आक्रमण पर हैं। 30 गज के दायरे को अगर छोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि 3-4 कदम थोड़ा वो आगे खड़े रहते हैं और क्या असर दिखा पाएंगे। अश्वत्थ पई गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। उस छोर से उनकी गेंद ऑफ द विकेट। ये गेंद बाएं हाथ से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और बैट्समैन ने गेंद को जाने दिया, सिर्फ नजरों से घूमकर पीछा किया। अंपायर ने थोड़ा सा समय लेते हुए फिर संकेत किया कि वाइड है। 1 और 1 2 रन्स बन चुके हैं वाइड और रन को मिलाकर, दौड़ को मिलाकर। तो इन 2 रनों के साथ रन्स बढ़कर 11 पर 1 विकेट के नुकसान पर 11 for 1 और अश्वत्थ अब गणेश को गेंदबाजी करेंगे। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 11 for 1। खेल का टेम्पो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा धीमा चल रहा है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि शब्दों का पिटारा खोलकर आपके सामने रखा जाए और टेम्पो बढ़ाकर कुछ अलग अलग शब्दों से माला को पिरोकर आपके सामने पेश किया जाए, ताकि ये पैंथर्स सुपर लीग 2023 जो कि आपको रास आए। उस छोर से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई। क्या कमाल की गेंद थी। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ और विकेट कीपर, गेंदबाज, फील्डर निश्चित तौर पर थोड़े से मायूस दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद अश्वत्थ की, बैट्समैन को छोड़कर बाहर की तरफ निकलती हुई मजबूर किया बैट्समैन को इसको खेलने का प्रयास करें और शायद बल्ले को हवा डालकर गई थी। उस छोर से ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को थोड़ा सा घुमाकर खेल दिया, लपेट कर फील्डर की दिशा में गई। 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 12 पर 1 विकेट के नुकसान पर 12 for 1 और योजना अश्वत्थ बना चुके हैं कि वो किस विश्वास के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ लाइन और लेंथ में वो गेंदबाजी करेंगे। अब तक की उनकी गेंदें जो फेंकी गई हैं उसमें काफी पैनापन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि वो वेरिएशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस छोर से अश्वत्थ की गेंद, ये गेंद और इस बार उछालने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थर्ड मैन में। फील्डर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए जो इनफील्ड में मौजूद थे। थ्रो विकेट पर विकेट गिर चुका है, लेकिन बैट्समैन सुरक्षित क्रीज पर हैं और रन आउट के लिए जो अपील की जा रही है मुझे लगता है कि अंपायर उसे खारिज कर देंगे, नकार देंगे। बैट्समैन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं। 1 रन पूरा हुआ, रन बढ़कर 14 पर 1 विकेट के नुकसान पर 14 for 1। श्रीनाथ और गणेश जो कि श्रीनाथ और गणेश कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि वो एक भागीदारी, एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप को बिल्ड करें, डेवलप करें, ताकि एक अच्छा सम्मानजनक लक्ष्य वो अपने टीम को देने में अपनी तरफ से योगदान दें। तो अश्वत्थ असर दिखाने के लिए आए। उस छोर से अश्वत्थ की गेंद थोड़ा सा शफल किया, ऑफ स्टंप को छोड़कर बहुत ज्यादा बाहर निकल आ गए, घुमाकर खेलने का प्रयास, लेकिन इतना आसान नहीं था श्रीनाथ के लिए क्योंकि गेंद काफी रफ्तार के साथ आई थी और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी। अगर शॉर्ट लेंथ होती, शॉर्ट पिच होती तो शायद बात बन सकती थी। गेंद शरीर से टकराई, रन लेने का अवसर नहीं। अश्वत्थ प्रोफेशनल कोरियर छोर से विकेट, उनकी गेंद बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, इस बार बंदूक से निकली गोली की तरह गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक है, पीएसएल चौका। तो इस शानदार चौके के प्रायोजक है पैंथर्स सुपर लीग 2023। कमाल का स्ट्रोक है। श्रीनाथ बिल्कुल इंतजार कर रहे थे कि कब उनको ऐसी गेंदें मिलती हैं, लंबाई में ज्यादा और हाफ वॉली पर थोड़ा सा लिया, तिरछा शानदार कवर ड्राइव था, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। उस छोर से अगली गेंद, इस बार क्या कहें स्ट्रोक को, इसमें ऐसा लगा कि ड्राइव भी था और कहीं ना कहीं जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलते हैं वो भी देखने को मिला, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 18, 1 विकेट के नुकसान पर 18 for 1।
18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी मैदान पर फैली हुई है, जगमगा रही है, चकाचौंध कर रही है। दूर आकाश अंधेरों में डूबा हुआ और वो ओस, वो धुंध, वो मिस्ट जिसे कहते हैं, आपको देखने को मिला। अगर आप आकाश के ऊंचाइयों को देखें तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा धुंधला सापन सफेद सफेद देखने को मिलेगा। वो ये संकेत है कि ओस गिर रही है, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जाड़े के महीने में हमेशा ये होता है। और कल इसका असर मुझे लगता है कि शुरुआत के मैचेस में देखने को मिलेगा। पिच में काफी नमी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त शानदार खेल चलता हुआ। दो श्वान आपस में खेल रहे हैं दूर विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग क्षेत्र में। बहुत अपने आप में मस्त दो श्वान खेल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास भी नहीं है कि शानदार प्रीमियर लीग पैंथर का चल रहा है। हालांकि इस छोर पर नया ताजा उभर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। कार्तिक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। कार्तिक, इस विकल्प जो कप्तान का था, कार्तिक कितना असर दिखा पाएंगे। उनके सामने स्ट्राइक एंड पर गणेश हैं। दोनों के बीच में कितना अच्छा द्वंद्व, युद्ध या फिर संघर्ष देखने को मिलता है, देखने वाली बात है। छिन्ने अपना स्ट्राइक एंड पर हैं। गणेश ने थोड़ा सा इंतजार किया, हालांकि वो चाहते थे कि गेंदबाज तैयार हो, लेकिन जब तक वो तैयार हो जाए, गेंदबाज अभी भी गेंद को पटक कर तैयार हो रहे थे। कार्तिक की गेंद, ये गेंद और ऑफ स्टंप के थोड़ा ज्यादा बाहर थी, जिसको थोड़ा सा ऑन दी तिरछा खेल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर क्षेत्र में डीप में गेंद गई और जब तक फील्डर गेंद को समेट पाते, 1 रन आसानी के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया। रन से के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक नायक, जैसे ही बैट्समैन दाएं और बाएं का जो अब जैसा मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो अब बाएं हाथ के बैट्समैन जिस तरह से श्रीनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, कार्तिक ने अपना गार्ड बदल लिया और वो अब मुझे लगता है कि शायद इस छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या कुछ होता है नंबर 7 के जर्सी में। कार्तिक थोड़ा सा समय ले रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी करें तो अच्छा होगा। काफी समय निकल चुका है और अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने बाकी हैं, तो अनुरोध है कृपया थोड़ा सा समय नष्ट न करते हुए खेल को जारी रखें। लेकिन फील्डर, गेंदबाज, कप्तान ये चाहते हैं कि कोई कमी न रह गई हो, वो आश्वस्त होना चाहते हैं। इस छोर से कार्तिक की गेंद दौड़ना शुरू कर दिया, ओवर द विकेट। उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, अतिरिक्त को छाल मिला और उसको थोड़ा सा टेनिस में फोरहैंड की तरह जिस तरह से खेला जाता है उस अंदाज में गेंद को स्मैश करने का प्रयास किया, लेकिन चूक गए। ऐसा लगा कि शायद बारीक महीम सा सिरा गेंद को बल्ले का लेकर गई है। विकेट कीपर पछता रहे हैं कि उनके हाथ से गेंद छूट गई, लेकिन ऐसा हो जाता है। उसको अगर आप मानसिक तौर पर ले लें तो फिर परेशानी हो जाती है। उसी क्षण छोड़ देना चाहिए ताकि फिर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर तैयार हो जाएं। 19 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। कार्तिक नायक की गेंद सामने वाली छोर पर श्रीनाथ हैं, उन्होंने थोड़ा सा क्रीज को छोड़कर बाहर की तरफ निकल आ गए गेंद को खेलने के प्रयास में। बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन में, फील्डर जो मौजूद है उन्होंने गेंद को उठा लिया। 1 रन लेने का अवसर कार्तिक, माफ कीजिएगा, श्रीनाथ के पास है। कुल योग बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 20 for 1। और अब गणेश स्ट्राइक एंड पर हैं। गणेश स्ट्राइक एंड पर और फील्डिंग में अगर देखा जाए तो उनके लिए ऑफ साइड पर मात्र 2 खिलाड़ी दायरे को घेर कर खड़े हैं। थर्ड मैन शॉट में, पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड रखा गया है। ऑन साइड पर अगर देखा जाए तो फाइन लेग शॉट में रखा गया है। मिड विकेट थोड़ा सा वाइड है और उसके अलावा सारे फील्डर्स जो कि फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्तिक गार्ड बदलते हुए अब वो राउंड विकेट कर रहे हैं। बाएं हाथ से उनकी गेंद और थोड़ा सा सीधे बल्ले से थ्रू द लाइन गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया और गेंद जाकर गेंदबाज के पैरों से टकरा कर निकल गई और मुझे लगा कि शायद अगर न लग पाती तो गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल कर सकती थी। 1 रन लेने का अवसर मिला बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 21 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 21 for 1। श्रीनाथ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। बहुत अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। एक छोर पर दाएं हाथ का बैट्समैन है, दूसरी छोर पर बाएं हाथ का, जबकि इस छोर से ये गेंद और उल्टे हाथ से गेंद को खेल दिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक है। फील्डर क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंद उनके पहुंच से दूर बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है और ये शानदार पीएसएल चौका। तो इस चौके के प्रायोजक हैं
पैंथर सुपर लीग 2023 कमाल का स्ट्रोक। श्रीनाथ दिखा रहे हैं कि वो मैदान के चारों ओर खेल सकते हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक उन्होंने खेला और बहुत कम देखने को मिलता है कि बाएं हाथ के बैट्समैन रिवर्स स्ट्रोक में ज्यादा सफल हो, और इतना सफल स्ट्रोक था श्रीनाथ का कि उन्होंने पहले शायद योजना बना ली थी कि वो रिवर्स स्ट्रोक के जरिए प्लेसमेंट के साथ गेंद को ड्राइव करेंगे और सफल रहे। इस छोर से ओवर द विकेट दोबारा खेलने का प्रयास है। इस बार दोनों पैरों को फैलाकर स्ट्रेच किया, गेंद उनके दोनों पैरों के बीच में से भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स पर नहीं गिरी। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा हवा डालती हुई गेंद को विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 25 रन से 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर का खेल शेष बचा है, 12 गेंदें शेष बची हैं और 12 गेंदों में कितना कुछ बन पाएगा। हालांकि दोनों बैट्समैन प्रयास जरूर अच्छा कर रहे हैं कि वो अच्छे खासे रन्स को बटोरें, लेकिन औसत अगर देखा जाए तो 18 गेंदों में 25 रन बन चुके हैं। तो अब चाहिए बैट्समैन को कि वो एक्सलेटर को दबाएं और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पटाखेदार बल्लेबाजी करें, ताकि एक सम्मानजनक लक्ष्य की और वो अपने टीम को ले जाएं। जबकि दूसरी ओर कप्तान आर के स्ट्राइकर्स के कप्तान पर यह जिम्मेदारी है कि इन बचे हुए ओवर्स को, उनके पास जो विकल्प बचा है, जो ऑप्शन बचा है, ऐसा गेंदबाज जो स्लॉग ओवर्स में निश्चित तौर पर रनों पर अंकुश लगाने वाला हो, प्रतिभाशाली हो और योजना बनाए। और विशेष तौर पर आप देखते हैं कि स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में जो गेंदबाज होते हैं वह आमतौर पिटे जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में कुछ ऐसे गेंदबाजों का होना जरूरी है जो सिर्फ बैट्समैन को परेशान करने में सफल हो, रनों को न दें। इस बार ऑन साइड पर बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया, गेंद दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी 6 रनों के लिए। पीएसएल का शानदार छक्का। गणेश ने अपने साथीदार को एक तरह से देखा देखी कहना होगा, गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक था। चाहे कौन सा गेंदबाज भी क्यों न हो, जब आप माइंड सेट कर लेते हो, जीतने का जज्बा हो, अगर आक्रामक स्ट्रोक खेलने का जज्बा हो, तो निश्चित तौर पर बात बन जाती है। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ आई, उसको पूरा प्लेसमेंट के साथ शानदार स्ट्रोक, पावरफुल स्ट्रोक लगाया 6 रनों के लिए। वो छोर से गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, गेंद को दोबारा उसी अंदाज में खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का निचला सिरा लेकर गेंद गई फील्डर के दिशा में। 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर पहुंच चुका है 32 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 32 for 1। और सौरभ एक ऐसी परिस्थितियों में पशोपेश में फंस गए हैं कि उनको यूनाइटेड कैप्टन स्टेज आ रहे हो का पशोपेश में फंस गए कि उनको बैट्समैन को रोकना है, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। योजना बना रहे हैं। ओवर विकेट प्रोफेशनल कुरियर छोर से उनके गेंद, इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर ने उतनी तेजी के साथ एक अच्छे एथलीट की तरह दौड़ते हुए गेंद को फील्ड कर लिया। बैट्समैन को सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिला। 1 रन के साथ रन बढ़कर 33 पर। यूनाइटेड कैप्टन श्रीनाथ का स्ट्रोक काफी बढ़िया, हालांकि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा उन्हें, थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ ढकेलते हुए। उस छोर से इस ओवर की अगली गेंद और ड्राइव किया, जड़ से गेंद को निकालकर खेलते हुए, जब तक फील्डर पॉइंट में डीप में गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो कर पाए। तीसरा रन लेने का शायद मन बना रहे थे श्रीनाथ, लेकिन आखिरकार अपने कदमों को रोकना पड़ा, क्रीज की दिशा में पहुंच गए। सिर्फ 2 रन से उनको खुश होना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 35 पर, 1 विकेट के नुकसान पर 35 for 1। सौरभ की अगली गेंद उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत ऊंचा स्ट्रोक, गगनचुंबी स्ट्रोक, गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। पीएसएल का छक्का।
बिल्कुल उस प्रोफेशनल कोरियर्स के बैनर के ऊपर से गेंद जाकर बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रनों के लिए। तो काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं गेंदबाज। Kotial United, a captain, a last caller. सौरभ की अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। 1 रन लेने का अवसर। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 42 पर 1 विकेट के नुकसान पर 42 for 1, जबकि ये चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। आखिरी ओवर शेष बचा हुआ है और मुझे लगता है कि अब अंपायर, माफ कीजिएगा, कप्तान पर ये जिम्मेदारी है। हालांकि वो काफी चिंतित निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे। आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान जानते हैं कि पिछला ओवर उनका काफी खर्चीला गया है, तो ये आखिरी ओवर, महत्वपूर्ण ओवर के लिए उनके पास क्या विकल्प बचा हुआ है। कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो इस आखिरी ओवर में रनों को बचा पाए, अंकुश लगा पाए और सटीक लाइन और लेंथ में वो गेंदबाजी करें। सिंगल्स अगर निकलते हैं तो कोई ज्यादा परेशानी न होगी, लेकिन चौके और छक्कों को रोकना होगा और ऐसी परिस्थितियों में शायद संदीप को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। संदीप यानी कि सैंडी गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और संदीप ने पिछले मैच में भी बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी और मुझे लगता है कि एक अहम महत्वपूर्ण ओवर वो करने के लिए जा रहे हैं, तो मानसिक तौर पर वो बिल्कुल तैयार हैं। मुश्किल से, जी हाँ, 10-12 कदमों का स्टेप निकालते हैं। मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं, उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद और बैट्समैन को बीट कर गई। यू मिस मी, आई हिट यू, बोल्ड हो गए। कमाल की गेंद, जैसा आप देखते हैं, एंगल डिलीवरी जिसे कहते हैं, एक क्रीज के कोने से गेंद को अंदर आते हुए डिलीवर करते हुए गेंद एक एंगल बनाती है, कोण बनाकर जाती है और बिल्कुल सही निशाने के साथ सटीक सीध में गेंद को उन्होंने किया। अगर वो गेंद को मिडल और लेग स्टंप पर करते तो शायद गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऑफ स्टंप के लाइन के थोड़ा सा बाहर गेंद को कर दिया और थोड़ा सा कटती हुई गेंद ब्लॉक होल की दिशा में आती हुई रफ्तार के साथ स्टंप्स पर जाकर गिरी और इसी के साथ एक शानदार विकेट प्राप्त हुआ संदीप को। संदीप तैयार हैं आक्रमण पर। उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, उसको घुमाकर ऑन साइड की दिशा में खेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन स्ट्रोक के साथ बैट्समैन 1 रन के लिए दौड़ पड़े। रन बढ़कर 43 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अब दोनों श्वान का हौसला बढ़ चुका है, वो बिल्कुल दायरे के अंदर आकर अपना खेल दिखा रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर श्रीनाथ। Kotial United, toss Ayoka. श्रीनाथ स्ट्राइक एंड पर रहे हैं और कदकाठी में ज्यादा ऊंचे नहीं, मध्यम है, लेकिन शानदार बल्लेबाजी आज उन्होंने की है। इस छोर से संदीप की गेंद आगे निकले और विकेट कीपर को अवसर जरूर था, लेकिन कहां अवसर मिलेगा जब बैट्समैन तेजी के साथ वापस क्रीज पर लौट जाएं। आगे निकलकर क्रीज को छोड़कर बाहर निकल आ गए थे श्रीनाथ। उन्होंने गेंद को उछालने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बहुत नीची रहती हुई विकेट कीपर के हाथों में समा गई। रन लेने का अवसर नहीं। 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संदीप की गेंद हमसे दूर जाते हुए लेग स्टंप के बाहर थी, अपने शरीर को संभाल लिया, बहुत अच्छी योजना बनाई, लेकिन अंपायर से इंप्रेस नहीं हुए। जानबूझकर श्रीनाथ ने अपने आप को उस लाइन से दूर रखने के लिए शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया ताकि उनके पैरों से न टकरा जाए। लेग स्टंप के बाहर थी, शायद बात बन सकती थी, अंपायर शायद मन बना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संदीप की गेंद उछालने का प्रयास, जोरदार अपील है और इस बार संदीप को एक और पुरस्कार मिला। आउट हो गए बैट्समैन, लेग बिफोर द विकेट। 43 के कुल योग पर तीसरा विकेट गिर चुका है। श्रीनाथ जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, इस ओवर में शायद 1-2 बार वो बीट हो गए। संदीप ने एक कमाल की गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में। मुझे लगता है कि इंडो सुपर, माफ कीजिएगा, आरके स्ट्राइकर्स के कप्तान ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने संदीप को आक्रमण पर बुलाया और इस ओवर में श्रीनाथ को भी उन्होंने परेशान किया और आखिरकार एक ऐसी गेंद जो स्टंप्स के सीध पर थी, बैट्समैन श्रीनाथ ने विकेटों को कवर करते हुए ऑन साइड की दिशा में खेलने के लिए पूरी तरह से विकेटों को कवर कर लिया था, बीट हो गए, पैरों से जाकर टकराई जो स्टंप्स के लाइन पर थी, सीध पर थी। अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि वो बैट्समैन को आउट करार दें। तो इस प्रकार तीसरा विकेट गिर चुका है। नए बैट्समैन का आगमन जो स्ट्राइक एंड पर हैं और संदीप एक और शिकार की तलाश में है, क्या वो हासिल कर पाएंगे। 5वां और आखिरी ओवर चलता हुआ, यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और संदीप ने गेंद को उठा लिया। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो करना चाहते जरूर थे, लेकिन फिर अपने आप को उन्होंने रोक लिया क्योंकि बैकअप करने वाला फील्डर काफी पीछे खड़ा था
और इस वजह से सिर्फ एक रन लेने का अवसर बैट्समैन को, और इसी के साथ 5वां ओवर समाप्त हुआ। और मुझे लगता है कि कप्तान सैंडी की पीठ थपथपाएंगे। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में रनों को रोका, बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हो शानदार पैंथर्स सुपर लीग 2023। तो आरके स्ट्राइकर्स को जीत का लक्ष्य 45 का है। वो किस तरह से अपनी शुरुआत कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। और अब समय है शब्दों को, भाषा को और विवरण को बदलने का, और आगे आपको सुनाएंगे अंग्रेजी में विवरण सतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. After winning the toss, captain of RK Strikers, they elected to field first. So that's the captain of Indo Super Warriors won the toss, selected to field first. So opening batters came into middle. Varun Shanbag, the very successful opening pair for team RK Strikers. Of course, Varun Shanbag fails to contribute from the bat in the first match, but in the second match he is back very strongly with some fantastic batting performance in the second match. And wait and see how well we're going to continue his performance in this particular match. And it's so important for both the teams to get back into the winning track. Especially for Indo Warriors, Indo Super Warriors is a must-win match if they wanted to be in the competition. And wait and see how well these two batter of RK Strikers, even the very important match for RK Strikers as well. And definitely it's going to be a very important match. And we are expecting some great battle between these two very good teams. And first ball, just number 22. Ramnath Shenai will going to start the proceedings from the commentary box end. Right arm over the wicket, balls beautifully bowled. There's a perfect start there from Ramnath as he pitched the ball a little bit outside the line of off stump. Not that much of deviation, the straighter one, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Little bit movement of the feet here for Varun Shanbag. He's just watching the ball going into the hands of wicketkeeper, and there is no chance at all for any run. Again the bowler bowling away from us. Right arm over the wicket. Varun Shanbag lofted it one down to mid wicket. There's the fieldsman. So the beat midfielder is making no mistake at all in the occasion. It's a perfect field placement, and bowler really bowled that line as per his field set. Unfortunately,
When you are having only two fielders outside the circle, we are choosing one of them means it's definitely going to be a disappointment dismissal for any batter. Especially the batsman like Varun Shanbag is known to be a very destructive opening batter for the side. But in that occasion, something wrong with the placement. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. And he just pays the penalty for that. This is not a kind of start which is required for RK strikers in this particular match. And the Varun Shanbag disappointment hand here for him as he out for duck. Replacing him is a new batsman walking towards the middle. Karthik Nayak, one more very useful cricketer for the side. He's a very young, talented cricketer for the side. But here is a bowler already got a very good start, Ramnath Shanai. Ramnath Shanai is a very useful bowler, especially bowling in the power play overs. He is a master of bowling a power play overs. And just keeping two fielders outside the circle. There is no protection has been given in the offside region. There is a short third man, backward point, short cover point, short mid off. There is a short square leg, one at short mid wicket, one at mid on. There is a deep mid wicket and deep long on. The two fielders outside the circle in the onside region. Karthik will go into face. Full toss delivery. Again, it looks like he will going to choose the fielder, but this time he played wide off that long on fielder. Before the fielder from deep mid wicket run across his left to field the ball. Ample time for Karthik to complete a couple of runs. So with that couple of runs, 2 on the board for the loss of 1 wicket. The first run which is came for RK Strikers. RK Strikers really wanted to get some good score here if they wanted to get back in this points table. Again, lovely delivery indeed. Lovely ball. It's just forcing the batsman onto the back foot. Ball almost in swing delivery. And batsman are realizing that's the one delivery need to give the respect to that one. Not really able to get the placement right as a short extra fielder fields the ball as no chance at all for any run. The score remains on 2 for the loss of 1 wicket. 3 lead per correction. 3 on the board. This time shuffled across the line of the delivery. Lucky indeed in the negation. Appeal for leg before wicket and umpire rightly so saying that ball is missing the off stump and Karthik once again missed that one. Left correction 2 on the board. 2 for the loss of 1 wicket. This time beautiful shot. This time up and over, down to deep X cover boundary for 4 runs. Even the two fielders chasing the ball like just like a cat chasing a mouse. But at last the ball winning the race against the fieldsman. Down to deep X cover boundary for 4 runs. Much required blow here from Karthik. Just look at the delivery. It's a short pitch outside the line of off stump. Enough time for the batsman to rock back. And just lofted that one over the head of that infield. And down to deep X cover boundary for 4 runs. So with that boundary score jumped into 6 on the board for the loss of 1 wicket. Karthik opened up in this final delivery of the first over. The much required run because this is a really quiet over ball by the first over ball by the bowler Ramnath Shanai. But I think it's even that boundary which came from that last ball. I think it's a good over. Just considering the fact that he's bowling in the power play over, 6 is not a big run in the power play over. At the same time, he got a big wicket of Varun Shanbag in that particular over. 6 for the loss of 1 wicket. Equal battle is on between these two teams. Adesh Bhatt is a bowler. Ashwath is a batter. Aditya from the professional Korean. To the left-hand batter Ashwath. Ashwath just examining the field set. Of course, after that power play, the fielding restriction is off. Then we can see that so many fielders in the deep. There is deep long on, deep mid wicket, deep backward square leg. There is deep long off and deep extra cover. This time ball is in there for a while. Ashwath wanted a single, but no really response coming from Karthik in the non-strikers, and rightly so. This doesn't want to take any risk of losing a wicket here. The partnership which is much required here for RK Strikers. 6 for the loss of 1 wicket. Again, Aditya. Round the wicket right now. Oh, lovely shot. Driven that one. A sweet sound came from the bat. 1 bounce over the row for 4 runs. Absolutely, it was a fantastic stuff there from batter Ashwath in the negation.
Of course, there is a fieldsman in the deep backward square, like one field at mid wicket, but he's choosing that area between the two fielders. An excellent placement into the occasion there from Ashwit to pick the single. Ashwit to pick the single, pick the boundaries. 10 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Aditya again. Right arm round the wicket, good line to ball, wicketkeeper behind the stamp, not really anticipating very well behind the stamp, misses that one complete, umpire not missing the opportunity to signal the bye. Dikshit is the umpire. Viraj, little correction, is the umpire at square leg. Ravi Ranjan, the first time in this Panthers Super League, is officiating at square leg. 11 for the loss of 1 wicket. Again Aditya from the professional career end. Right arm over the wicket. Oh, that ball is not far away from the wicketkeeper, isn't it? Ball is not far away from the wicketkeeper behind the side, because the batsman off the back would try to cut that one, but not really able to get that one from the middle of the bat. He's got outside edge of the bat. Luckily that ball didn't carry to the wicketkeeper in that occasion. And one more run is added to total. 12 for the loss of 1 wicket. Time is exactly 11 past 5. The line in the night, but we can see that the crowd still enjoying the game of cricket here in UCG cricket ground. Aditya from the far end. This time again Karthik across the line of the delivery, swinging that one, but this time protection has been given in the deep, so batter have to settle for the single. So with that single, score now moves on to 13 for the loss of 1 wicket. Slowly and steadily reduce the batters, try to get some acceleration, which is much required for strikers to get some good score against Indo Super Warriors. Aditya is almost boxed, running from the edge of the 20-yard circle. Ball him, clean him up, looking for a reverse stroke, pays the penalty for that. Karthik is back into pavilion. This is a really good thinking bowling there from the bowler Aditya, seeing that batsman almost premeditated switch is attempted. Then he's bowled right on the block hold of the batter, and nowhere near the pitch of the delivery. Karthik pays the penalty for that. The wicket number 2 is back into pavilion of RK Strikers. 13 for the loss of 2 wicket. So 13 for the loss of 2 wicket. So RK Strikers, if able to win this match, then definitely you're going to get the place to qualify for the next round. And that's why the RK Strikers, they're working hard. But more hard work which is required for Indo Super Warriors, because they lost 1 match out of 2. They won 1. They got 2 points in the points table. And that means more than RK Strikers. Indo Super Warriors desperately wanted to win the match if they wanted to remain in the competition. So 2 overs completed, 3 overs remaining. Jersey number 18 brought into attack. Ganesh is a very useful cricketer for the side of Indo Super Warriors. LFP, just like I mentioned, the one team which is came from neighboring state Kerala. From long way, 350 kilometers they need to travel to come here and perform in this prestigious Panthers Super League 2023. Ganesh again, seaming away from us. Bausa, lovely shot, beautifully driven, but protection is given in the deep backward square leg. Ball is just passing between his 2 legs actually. He's not really able to bend it right time. It was definitely going to be a lazy piece of fielding there by the fielder, and he pays the penalty for that. What could be a certain single because of that misfield by the fielder. Got a boundary. Just I want to see it in the replay. And the ball is almost just coming to the hands of the fielder, isn't it? And of course, unfortunately, he couldn't manage to field the ball very well. Lucky boundary came here for RK Strikers. This is sensible batting here from the batter. रमिता रावाक संदेशान स्टेजार आडका म्हणून रिक्वेस्ट करता. This is a sensible batting, isn't it? After hitting the boundary, then Ashwath quickly realizing that he got the runs what they really wanted in this particular over. If they're able to pick 5 runs in their 5 deliveries, then it's going to be 9 runs in that over. That's what it need to be. That was a presence of mind is so important for a cricketer. But here is Ganesh unlucky. And they got
unlucky, considered an unlucky boundary for the opposition. Lot of shouting is going on here. It's just only for the field set. They're putting all fielders inside the ring in the offside region. There is no fielder inside the ring in the onside region. Lot of protection given in the on. This time off again across the line off the delivery. Swings that one, but the protection is given in the mid-wicket region so that the batsmen have to settle for the single. With the single scoreboard numbers on to 19 for the loss of 2 wicket. What a fantastic game of cricket is going on here. Deadly Panthers organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Panthers Super League 2023 in this most beautiful and historical UCG cricket ground. Is known to be a lots of cricket here in Mangalore. Next ball, Ganesh drives, bowler's back drive. You wanted to stop that one, not from the hand, but he wanted to put his leg to the line of that stroke, but he couldn't manage to stop that one. Ball just defeating his trying legs, and he picked up a single for that. Ashwat in the scoreboard numbers under 20 for the loss of 2 wicket. Vinayak Pai facing Ganesh. This time Vinayak every time he loves to play across the line of the delivery. This time they're running hard between the wicket, and they completed a couple of runs. Excellent running between the wicket. This is a technique, isn't it? When you complete your first run very quickly, and then so easy for you to come back for the second. The moment that Ashwat places the ball on the mid wicket, quickly realizing that there could be a second run if run well, and he's just asking his partner to come back for the second, and responded very well by his partner. 22 for the loss of 2 wicket. Ganesh again bowling away from us, right above the wicket. Just doesn't want to do nothing in this delivery, seeing the ball is going away from him. And he's just left the ball, rightly so, and wide call by umpire. One more extra is added to total now. 23 for the loss of 2 wicket. Ganesh trying to get his line and length proper as he bowls again now. This time he lofted the fielder there in the deep extra cover. Can he able to get the catch? Yes, he's got the catch. Ramnath, who is standing in that deep extra cover region, making no mistake at all. And the batsman, look at that one. He wanted to clear that fielder, isn't it? But not really getting that much of elevation he's looking for. Of course, he's got elevation, but he's not really get the distance what he's looking for. The one more wicket is back into pavilion of RK. The strikers 23 for the loss of 3 wicket is over number 4 in progress. 3 overs completed. The run rate is just under 8 runs per over. As the exact calculation is concerned, it's 7.33 runs per over. .50 runs per in fact, and 23 for the loss of 3 wicket. The 4th over is going to start from a professional career end. Adesh Bhatt in his 2nd over. So new batsman just came into middle. Chandrakant Shanai. Ashwath is on strike now. So far he's looking pretty good. Scored 11 valuable runs in just 7 deliveries. And bowler from the far end, Adesh Bhatt. From the professional career end, lofted, but straight to the hands. Catching practice here for the same fielder, Ramnath, who taken a catch in the previous over in the position at the deep extra cover. Now he's standing at deep long on region, and he completes the catch. So Indo Super Warriors, they're strongly back in this game. And if he wanted to put the brake on the run rate, I think is the right way to pick the wickets. And 2 quick wickets fall on here for RK strikers. They are now 23 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Indo Super Warriors, they know exactly the importance of winning this match. RK strikers knows that they're almost in the winning track after winning 2 matches. Definitely level of confidence going to be very high, but it's not enough. They need to get some good score if they wanted to win the match. So new batsman in, Sandeep Kamath. Sandy will going to face next delivery from Aditya.
successful bowler. He got a big wicket in this particular over. And he's bowling from the far end. Right arm over the wicket bounce. This time ball is in the air. Extra cover fielder will going to take one more catch. 2 wickets in a quick session. 3 wickets in a quick session. Of course, they got a wicket in the previous over. Now the 2 consecutive wickets, the 2 consecutive deliveries for Indo Super Warriors. But here is the worries which is started here for RK Strikers. The wicket number 5 is back into pavilion. It's 23 for the loss of 5 wickets. RK Strikers just losing their momentum, what really got in the first 2 overs. Each and every batter try to get some acceleration, but they're throwing their wicket cheaply. So new batsman is Shaurabh Bhakta. The one more recognized player for the side of RK Strikers will go to face as Aditya. Right arm over wicket balls. This time against the line. He wanted to swing that one. Just was a leg cutter in the negation there from Aditya. But not only turns the ball a lot, but he's getting some extra bounce as well. And Saurabh completely misreading the turn of the delivery and the bounce of the delivery. The perfect delivery to ball to the new batter. Aditya Bhatt again from the far end. Again he wanted to swing that one. Swings and missed. Wicket keeper once again completes the job. Identical mirror display of previous delivery, isn't it? The same line and length bowled by Aditya Bhatt, and same attempt came from the batter to hit the ball towards the deep mid wicket. Intention is to get past that mid wicket division. Again, this time one more dotted delivery. 3 consecutive dotted deliveries. Not a good going here for RK Strikers, but fantastic going here for Indo Super Warriors. As Aditya Bhatt so far is really looking pretty good. One of the best overs so far in this bowling department of Indo Super Warriors, which is bowling now from Aditya Bhatt. But job is not yet over. 1 ball remaining in this over. This time, what we are talking about, the job is not yet over, but job which is completed now by the batter Saurabh Bhakta by hitting the ball down to mid-wicket region. This is a speciality of cricket. All the efforts are gone in vain with one delivery. And Saurabh Bhakta is not really given up. Even that 3 dotted deliveries, trying for the big shot. But in the last delivery, he's just got a very good contact with the bat. Absolutely instrumental sound which is came from the bat. That means he's connected that one, get connected that one right from the middle of the bat towards the deep mid wicket for a huge 6. 29 for the loss of 5 wicket. Now last over remaining. The last over remaining in the for RK Strikers. And 10 or 11 runs in the final over. Definitely it's going to be a good score. Rohit is a new bowler. He's going to bowl that last over. But a lot of discussion is going on here. Captain and the players of Indo Super Warriors. We are having a shortage of time. I will request the fielding team, please make it fast. $16 required from 6 balls. Then it's going to be a very interesting. The one big shot will going to change the complexion of this match. So the batsman is on strike is Chandrakant Shanai. Chandrakant Shanai so far is not faced any delivery. Look at the wicket keeper behind the stump. He's almost charging in, isn't it? He's not really satisfied with the ball, with the field set. But the bowler almost started his run. Almost it looks like we're going to complete that delivery. He's charging in from his position, saying that wait. The fielding position is not right. But wait and see now. Here is the next one. Left arm. This time again looking for the improvisation. Not really getting that one right from the middle of the bat. Not a fully controlled pull shot there from the batter, but quite enough for Chandrakant to rotate the strike, to give the strike to this man. Saurabh Bhakta. He's got a 6 in the previous over. And wait and see what Bhakta will going to do here. 5 balls, 15 runs required for the victory. Badly required one big shot. But at the same time, 1, 2 or 2 good deliveries which is badly required here from Rohit if they wanted to back in this game. Left arm. Bhakta looking for the big shot. Ball is in there. Opportunity for the fielder. A square leg fielder has got a very good run to complete that catch.
I think Ganesh is the fielder from the square leg, runs very well and takes his lovely position to take the catch. Just look at it on a replay. Saurabh Bhakta shuffled across the line of the swings that one, top edge. Ball is in there for a while. Enough time for Ganesh to judge that one. It runs back. Absolutely fantastic catch taken there by Ganesh in that occasion. So 30 for the loss of 6 wickets. Now 4 balls, 15 runs required for the victory. Four balls, 14. So new batsman in is lot of noises coming from the other end. The supporters of Arc Strikers. A lovely, beautiful delivery. Absolutely perfect one here from the bowler. Just a little bit moment of the same position from the bowler in the negation, getting some extra deviation. The batsman completely missed out. Now final opportunity, 15 to get from 3 balls. Decider delivery. Rohit. Left arm, round the wicket, lofted, can he get the distance? No, he gets the distance and he's putting the ball into the boundary line for 4 runs. The match is not yet over. The match which is not yet over is still alive because of that boundary. Now 11 required from 2 balls. 2 maximum which is required for our strikers to win this match. Sometime it's happening in cricket, isn't it? Luck is definitely going to be a fundamental ingredient in a success. That boundary, where could be a chance of catch for the fielder, is not only fails to take the catch, but at the same time, he conceded boundary for that. If the batsman able to get the 2 sixes in the final 2 deliveries, definitely everyone going to blame that fielder who drops the catch in a deep mid-wicket region. 11 to get from 2 balls. Rohit bowling away from us. Left arm. Decider delivery. Fantastic one. Now, just a format is left in this game. Unless the bowler will going to do any stupidity. Bowling no balls or white balls. No one can stop Indo Super Warriors from the victory. 1 ball. 11 to get. Now Indo Super Warriors definitely going to open the gate. Chances of qualifying for the next round. And batsman going for the big shot. They're looking for the run. They know exactly Arc Strikers. Each and every run going to be very important. As far as the net run rate is concerned, they're looking for the third as well. But this time is run out which has taken place. And at last they managed to get 36 runs. They won the match by 8 runs. They won the match by 8 runs. Arc Strikers, they lost their first match out of 3. They won 2. They lost 1. But Indo Super Warriors, again, very interesting. Out of 3 matches, they won 2 now. And they lost 1. It's going to be very interesting now, points table. And it's going to be a chance for the teams in that group who will going to qualify for the next round. 36 at last they managed to score by losing 7 wickets. Congratulations for the winners. Time to announce the man of the match. So one stage is Arc Strikers are looking, they're cruising towards a victory, but the man who's bowled with a fantastic 2 overs, no more than 12 runs and picked up 3 valuable wickets, Aditya Bhatt of Adish Bhatt of Indo Super Warriors, who judged as the man of the match for his valuable 3 wickets. So I request Adish Bhatt to come and collect your man of the match from our chief guest, and we'll take a short break here, and after that short break, Gopi, my friend, will go into take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
इंडो सुपर वॉरियरच्या आदिश भटान स्टेजार येवका मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी घेवच्याक आनीक मॉडर्न बेडोजाच्या संकेतान मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी आदिश भटा दिवका म्हणून निमगून घेता I request the extra player of both teams to please report to the stage immediately to tell the player's name. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. So just 2 matches remaining on tonight. And the match number 15th of this tournament is now going to begin. इंडो सुपर वॉरियरच्या आदिश भट मॅन ऑफ द मॅच ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Right, everything set for the first ball of the match, and the first ball of the match is now coming up. And Kodial United Super Cup, after one toss, they elected to field first, and because of that, the openers of Team Mangalapur decreased. First ball, this time played that one square off the wicket. इस बार गेंद को निकाला था एक्स्ट्रा कवर पर बैकफुट पर जाने के बाद अंतिम क्षण में गेंद पर कुछ हद तक मिसफील्ड करते हुए, हालांकि गेंद उनके आगे टिप्पा खाए थे और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घुमा लेते अपनी दिशा को बदलते हुए, और आखिरकार गेंद को जब तक बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. रन काउंट स्टार्टेड फॉर देम 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुधींद्रा दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार पटकी विकेट ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर को बीट करने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, गेंद पहुंचे उनके पैरों पर टकराने के बाद निकली इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. कोडियाल यूनाइटेड सुपर क्लब स्पोर्ट्स क्लब और टीम मंगलापुरा के बीच मैच शुरू हो चुका. टीम मंगलापुरा पहले बल्लेबाजी करता हुआ. ताज़ा समाचार यह है कि कोडियाल यूनाइटेड सुपर क्लब के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, और तो इस वक्त पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर जारी. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात. डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुधींद्रा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद लंबे रनअप के जरिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए दिशाहीन गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा. 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल. लगभग
विकेट कीपर के छाती पर कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए, शायद गेंद काफी तेज रफ्तार के साथ उनके छाती पर टकराई थी और आखिरकार बल्लेबाज को तो नहीं लेकिन टीम को जरूर रन मिला 2 और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। टीम मंगलापुरा ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮಂಗಲಾಪುರ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 12th player of ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. So first over in progress, it's 5 without loss in the over number first in progress और गेंदबाज सुधींद्र इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और विनायक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. 12th man पवेलियन याला योका म्हणून एक विनंती दोन्ही टीमाच्या 12th और man इस बीच गेंदबाज की ओर अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिडली गेट द लास्ट मोमेंट और गेंद पहुंची गली की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 6 विदाउट लॉस. मैच नंबर 15 just started a short while ago between Kodial United तुमगे 12th man नाक पवेलियन बेटर होगा Sports Club कोडियाल versus यूनाइटेड टीम मंगलापुरा. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद जाते हुए बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन एन मौके पर रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 6 विदाउट लॉस. कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, द एक्स्ट्रा प्लेयर रिक्वायर्ड इमीडिएटली. तो यहां पर अगली गेंद लेकर सुधींद्र, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि अंतिम क्षण में विकेट कीपर चूके और रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिला और इस 1 रन के साथ बाई डिक्लेयर्ड बाय अंपायर और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए सुधींद्र. और जहां तक सवाल है बल्लेबाज को कुछ खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का अवसर वो प्रदान अब तक नहीं किया है उन्होंने इस ओवर में. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, गेंद फुल टॉस, उछालना चाहा, अपील लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में हो चुका है. लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रन बिना किसी नुकसान के. पहले ओवर की समाप्ति के बाद फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, इट्स 8 विदाउट लॉस. स्टेडी स्टार्ट फॉर Team Mangalapura after being losing the toss and put it to bat by Kodial United Sports Club in the 15th match of Panthers Super League 2023. They made a steady start. In fact, it's 8 without loss after first over. Still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई. पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए. रात के 11:45 यहां पर बच चुके हैं और निस्संदेह यहां पर लगभग सन्नाटे भरा माहौल छा चुका है और दर्शक कुछ गिने चुने इस मैदान के इर्द गिर्द नजर आते हुए खामोशी के साथ इस वक्त मैच का मुआयना करते हुए. और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का 15वां मैच यहां पर प्रगति पर. प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ. गेंद जाते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन पर इनटू द गैप एज वेल. ही गेट्स एट लीस्ट कपल फॉर दैट. और इन 2 रनों के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 2 अंकों पर. इट्स 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज जो गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं गिरीश भाई पूरा नाम है उनका और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा जोखिम भरा रन पूर्ण करते हुए और इस जोखिम भरे रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर. इट्स 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. स्टिल इन 3 overs टू गो आफ्टर दिस वन इन देयर इनिंग्स. और अगली गेंद लेकर गिरीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक नजर फिराने के बाद एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार. बहुत ही सुंदर सी गेंदबाजी की शैली उनकी. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार एज एंड बिहाइंड द स्टंप्स. Just wanted to play that was square of the wicket. The ball got his stoppage and the wicket keeper behind the stumps made no mistake.
हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। किस तरीके से गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद का पीछा करना चाहा, चूंकि बल्ले का बाहरी किनारा, एंड विकेट कीपर मेड ऑल द वर्क बिहाइंड द स्टंप्स। तो पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। द बैट्समैन डिपार्टेड जस्ट शॉर्ट while ago, caught by wicket keeper of the bowling of Girish. प्रथम विकेट के रूप में प्रथम आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तो यहां पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सो नंबर 3 बैट्समैन is now coming out to the middle. Vijay Raj as a number 3 batsman, slowly walking towards to the striker end. वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गिरीश की अगली गेंद का। तो गिरीश पिछले गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास वो यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, और देखना है कि आने वाले गेंद में उस आत्मविश्वास का वो किस तरह अनावरण करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के से बल्ले पर गेंद को आने दिया, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए जब तक गेंद को कवर पॉइंट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास समय था कि वो 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल सके। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार विनायका पई, गिरीश पई की अगली गेंद का सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, और मिड ऑन पर एक फील्डर किस वक्त तैनात किया गया है मिड ऑफ से। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। गिरीश की गेंद बैकफुट पर गए, स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, अंतिम क्षण में बल्ले के मुंह को खोलते हुए, गेंद की उछाल को पहचानते हुए, और हल्के से गेंद को इस वक्त लेट कट कर दिया शॉर्ट थर्ड मैन पर। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पकड़ी पर रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और धीरे धीरे ये साझेदारी जो कि इस वक्त मैदान पर जमती हुई टीम मंगलापुरा के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को इस बार हल्के से पुश कर दिया था, स्टंप्स को कवर करने के बाद मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में, गेंद की लेंथ को पहचानते हुए, गेंद की लाइन को पहचानते हुए, और आखिरकार जब तक शॉर्ट मिड विकेट फील्डर तेजी के साथ गेंद पर लपके, बल्लेबाज ने तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन प्राप्त कर लिए। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। It's 14 for the loss of 1 wicket. 2 overs had been bowled, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining there. 3 ओवर का खेल बाकी। V4 न्यूज 24/7 चैनल पर इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट, एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट कहा जा सकता है, इस वक्त किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो पैंथर्स सुपर लीग 2023 इस मेगा श्रृंखला का मैच नंबर 15 यहां पर प्रगति पर। और दिन माफ कीजिए रात इस वक्त देर रात की ओर बढ़ते हुए 11:50 यहां पर बज चुके हैं, और यहां पर दर्शक इस देर रात होने के बावजूद कुछ मात्रा में मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और कुल मिलाकर इस मैच के बाद एक और मैच आज खेला जाएगा देर रात में, और उसके बाद बचे हुए 12 मैचेस, यानी लीग के 2 मैचेस और दूसरे दौर प्ले ऑफ और फाइनल मैचेस, कुल मिलाकर 12 मैचेस कल सुबह से रात को 10 बजे तक खेले जाएंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा। 2 for outside the off stump and a single run added to the total in the face of extras. 15 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over in fact. और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और आसान सा कैच यहां पर लपक चुके हैं। आमतौर पर उर्वा क्रिकेट मैदान का स्वभाव ऐसा है कि देर रात होने के बाद यहां पर हवा के रुख काफी हद तक कम हो जाता है और गेंद ट्रैवल नहीं कर पाती है, और यहां पर गेंद को उछाला था, लेकिन हवा का रुख काफी धीमा होने की वजह से गेंद सीमा रेखा को पार नहीं कर सकी, और आखिरकार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई और लपक ली गई, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। So 3rd over in progress, it's 15 for the loss of 2 wicket, and the new batsman is now coming out to the middle. तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, तो इस वक्त गेंदबाज तीसरा ओवर प्रारंभ करते हुए हमसे दूर वाले छोर से, यानी प्रोफेशनल एंड की ओर से,
और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर, स्वीपर गेंद तक पहुंचे। गेंद को फील्ड करने के बाद स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो करते हुए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि वो एक रन के साथ अपना छोड़ बदल सके। It's 16 for the loss of 2 wicket at the start of the third over. In fact, धीरे धीरे यहाँ पर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लाते हुए गेंदबाज कुडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के और बल्लेबाजों पर दबाव डालने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए और फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज जो कि डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को थोड़ा सा इस वक्त सीधा तैनात किया गया है डीप कवर पॉइंट पर। जहाँ तक सवाल है लॉन्ग ऑफ का, तो लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, थोड़ा सा स्क्वायर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, टॉप एज नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। और इस बीच एक रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। नजदीकी मामला हो सकता था अगर थ्रो में ज्यादा रफ्तार होता, लेकिन थ्रो काफी धीमा। और इस बीच बल्लेबाज 2 रन सफलता में यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. What a fantastic cricket tournament is now going on here in the name of Panthers Super League 2023. And the match number 15th of this tournament is now progressing. The first session is now going on here. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थोड़ी सी उछाल लेते हुए बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। हालांकि गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकली थी इस वक्त और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी, इस वक्त रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 18 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। स्कोरबोर्ड स्टेज एट 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। विनायका और लक्ष्मी इस वक्त पारी को संवारने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद। ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद की धीमेपन को समझ नहीं पाए और आखिरकार बल्ले पर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मंजू इस वक्त एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। क्वाइट क्रिकेट इज नाउ गोइंग ऑन यार, खामोश क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है टीम मंगलापुरा की पारी में। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, लेकिन नॉट क्वाइट मिडविकेट द लास्ट मोमेंट। ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट। इन कम्स अ थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर फ्रॉम द डीप मिड विकेट फील्डर एंड द बैट्समैन आर फाइनली satisfied with a single, and third over has been came to an end. It's 19 for the loss of 2 wicket and 3 overs have been bowled. 2 overs left in overall calculation in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 2 overs with the help of remaining 8 wickets. Fourth over now going to start from the commentator box end और गेंदबाज मेरे ख्याल से गिरी अपना दूसरा ओवर इस वक्त शुरू करते हुए। तो अपना पहला ओवर उन्होंने काफी किफायती फेंका था और इस वक्त अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार रहा। और जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है तो इस वक्त दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर लौटते हुए, टीम के अन्य खिलाड़ी का आगमन इस वक्त हो चुका है। कुछ उन्होंने सलाह दी जो इस वक्त उनके प्लेयर्स के डगआउट से इस वक्त आया है। तो जहां तक सवाल है, कुछ सलाह मशवरा करने के बाद इस वक्त दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर वापस लौट चुके हैं। स्ट्राइक इस वक्त विनायका के पास, गेंदबाजी शुरू करते हुए गिरीश। चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ उनके बारे में। फोर्थ ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। फर्स्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर इज नाउ कमिंग अप। गिरीश दाहिने हाथों पर द विकेट, खूबसूरत एक्शन के जरिए ये गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। Just trying to play that one on the onside after being shuffling across a little bit, but he's got a gap between his 2 legs, and the ball passed in that legs and stuck to the bit of stump. Belts are disturbed, and that is the wicket number 3rd. 19 for the loss of 3 wicket. और विनायक आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। हालत कुछ हद तक नाजुक इस वक्त दिखाई देती हुई टीम मंगलापुरा के लिए। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के सवाल है, as far as the good score is concerned, the situation for team Mangalapura, they should have to cross at least 40 mark if they have to post a huge target, a competitive target in front of the batsmen of Kodial United Sports Club when they coming to bat. और जहां तक सवाल है, इस वक्त सिर्फ 11 गेंदें उनकी पारी में बाकी रह गई है और देखना है कि वो 40 के आंकड़े तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो गिरीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और इस वक्त सामना करने के लिए वो तैयार गिरीश की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गिरीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए।
ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश कर दिया, गेंद की स्विंग को पहचानते हुए बल्ले और पैर को एक साथ लाते हुए शॉट कवर की दिशा में, और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करेंगे। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। तो जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का, तो इस वक्त गेंदें बाकी हैं 10, और देखते ही हैं कि इन बचे हुए 10 गेंदों में यहाँ पर टीम मंगलापुरा के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की कोशिश करते हुए इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज और गिरीश अपनी ओर की अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए he bowled that one with a straighter line, and the ball kept low after pitching and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 20 for the loss of 3 wickets. 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। गिरीश एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगोट की दिशा में, और मैं समझता हूँ वहां पर गेंद को लपक लिया गया या नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन वहां पर गेंद को लपकने में शायद असफल रहे थे, और यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। काफी ऊंचा इस वक्त उछाला था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि वहां पर कोई कैच आउट नहीं हुआ। फील्डर शायद मेरे ख्याल से गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन गेंद को यहां पर लपक नहीं पाए, तो 2 रन यहां पर मिलेगा, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। इस बार गेंद को ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो इनटू द हैंड्स ऑफ द बॉलर, इन फैक्ट द थ्रो हिटिंग टू द विकेट्स एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, and because of that the batsman come back for the extra second run. It's 24 for the loss of 3 wickets. तो निस्संदेह रन बनाने की पूरी तरीके की कोशिश इस वक्त करते हुए बल्लेबाज टीम मंगलापुरा के, वो जानते हैं इस वक्त उन्हें रनों की सख्त दरकार है यहाँ पर, और उनके टीम को कम से कम 40 के आंकड़े तक पहुंचाना है अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो, और इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर जारी रखते हुए इस वक्त बल्लेबाज अगली गेंद के लिए तैयार। गिरीश की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों पर क्रीज पर रख चुके हैं। 25 for the loss of 3 wickets and 4 overs had been bowled. Still a slower progressing here now for Team Bangalore, and far as the first 4 overs of bowling is concerned from the bowlers of Kodial United Super Club, they bowled very well and restricted the batsmen for just 25 runs in the first 4 overs। और देखना यह है कि पहले 4 ओवर के सफलता के सिलसिले को इस अंतिम ओवर में भी कोडियाल यूनाइटेड के गेंदबाज बरकरार रख पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त काफी लंबी बातचीत जारी है कि अगला ओवर किसको दिया जाए, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और अंतिम ओवर कुल मिलाकर अब टीम मंगलापुर की पारी में शेष। दोगजने कॅप्टन्सान अंगे स्टेजला येऊ का टॉसाक जलतीतली वग्गी कॅप्टन्सान येऊ का समय अभाव मस्तस अगला मैच नंबर 16 इस श्रृंखला का पहले दिन का अंतिम मैच, अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा, और या दिसाच्या लास्ट मैच जलतीतली वग्गी टॉस येऊ का, इसलिए मैं दरख्वास्त मैच पाई सेकंड जाता निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के कप्तानों से कि कृपया टॉस के लिए स्टेज को संपर्क करें। प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली फॉर टॉस प्रोसीजर। Last over starts in their innings. The bowler starts a fresh proceedings from that side and professional and in fact. रमेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ टीम मंगलापुरा की पारी में पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, थोड़ी सी सफल होते हुए चूके कैप्टन कयसलरी टॉस आयो का, और सीधे गेंद पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद उछाला हवे में, और मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया है। He's just trying to heave the ball over deep in wicket, but not succeeded. The ball gets some extra bounce at the last minute, got a stoppage, and finally no mistake made by the short mid wicket fielder, and that is the wicket number 4. 25 for 4, and with just ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಾಪು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ವೀರವೆಂಕಟೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. So 25 for 4, just 4 balls now remaining in their innings. Aditya, the new man, number 6 batsman, is now comes out to the middle.
for Team ಸಮಯದ ಅಭಾವ Mangalapura. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 4 balls left, and the third delivery in this over is now coming up from the right-handed bowler. Dainat over the wicket again. Leg stump से बाहर की ओर निकलते हुए wide का इशारा. Single run added into the account of ವೀರ Team ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ Mangalapura. ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. Here he comes. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕಾಪು ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Driven down to long off, not more than a single. In fact, the fielder cleanly collected the ball, just a single. 27 now. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. 3 गेंदे अब बाकी और इस वक्त the lefty batsman is now coming to bat. In fact, Hari Prasad Pai, the lefty batsman, he is batting on 1-of-1 delivery. He is now going to face the right-handed bowler Ramesh Pai और इस वक्त Ramesh वीर वेंकटेश कैप्टन आणि आत्ता येऊ का? कापू कैप्टन वेट करतोय सर. here he comes, right arm over the wicket. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, टॉस घालनो short third man पर निघून घेता. एक रन मिलेगा. It's 28 for the loss of 4 wicket. Just couple of balls now left in their innings. In fact, 4.4 overs gone. Just 2 balls to come. And let's see how many runs they are making in these remaining 2 deliveries. और गेंदबाज रमेश इस वक्त आदित्य के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दूसरी अंतिम गेंद उनकी पारी का. The second last ball of their innings is now coming up. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद क्रिकेटर्स वर्सेस वीरांजनेय कापू तंगल टॉस जाता सर. अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा. 1 run added to their total. It's 29 for the loss of 4 wickets. Still couple of balls left in their innings. अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं उनकी पारी में. और इस बीच गेंदबाज रमेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा. Consecutive wides for the bowler. 30 now for the loss of 4 wickets. टॉस विन जाऊन फील्डिंग सिलेक्ट केला. He's got a problem on his length and line at this situation after being bowling 4 good deliveries. He bowled 2 consecutive wides and conceded 2 extra runs for the opposition side. 30 for the loss of 4 wicket. And still 2 balls left in their innings. The bowler comes. Ramesh अपनी अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था. अगर छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन अंतिम गेंद पर बल्ला अड़ाया और इससे पहले कि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. एंड नाउ द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दोनों बल्लेबाज इस वक्त आपस में कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच उनकी पारी की अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार रमेश, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए हरिप्रसाद पाई. Here the last ball comes. इस बार चूंकि पैरों पर टकराए, going down the outside the off stump like the last one. In fact, they completed a single in the face of leg bye, and with that leg bye, the innings is up. Their stipulated overs are completed, and they finished with 32 for the loss of 4 wickets after completion of 5 overs. Team Mangalapura finished with 32 in 5 overs, 33 the target for Kodial United Sports Club, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.60 the run rate required for them at this situation. 33 they have to score in their stipulated 5 overs. With the help of 10 wickets they have to score. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. वीरांजनेय कापू टॉस जाऊन वीवी क्रिकेटर्स आणि फील्डिंग सिलेक्ट केला आणि अंतिम मॅच आयचे. And we are just taking a short break, and we'll be back right after the short break with the innings of Kodial United Super Sports Club will going to begin. And now
creative art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees and also get placement assistance. Admissions open. SICA, C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैंथर सुपर लीग 2023 में सारे दर्शकों का दोबारा स्वागत। रजत जो कि इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर और रमेश नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। दूसरी पारी जो कि शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है कुल मिलाकर 33 रनों का। दूर वाले छोर से विकेट ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। कंधों का ज्यादा उपयोग किया, गेंद को थोड़ा ज्यादा पटकते हुए, गेंद में अतिरिक्त उछाल लाते हुए, गेंद हवा में थोड़ा सा ज्यादा बाउंस होकर बैट्समैन गेंद को घुमाने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं। लक्ष्य कुल मिलाकर 33 रनों का। कुडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम मंगलापुरा जिन्होंने 32 रन बनाए, उस छोर से ये गेंद 2 बार गेंद बैट्समैन को छक्काती हुई गेंद। पिछले गेंद के मुकाबले में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन था। गेंद ज्यादा लंबी थी लेकिन ऑफ कटर के अंदाज में गेंद घूमती हुई बिल्कुल बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और ऑफ स्टंप को छोड़कर हालांकि थोड़ा बाहर जरूर थी लेकिन लाइन बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ बैट्समैन घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास में चूक गए। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं गया। रजत अभी भी स्ट्राइक एंड पर हैं। दूर वाले छोर से विनायक भाई जो कि गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं रजत के लिए। उनकी गेंद लंबी दौड़ के साथ मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज है। रजत ने गेंद को ऑन साइड पर उछाल दिया। मिड विकेट क्षेत्र में हवा में तैरती हुई गेंद फील्डर की दिशा में उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। बैट्समैन रजत आउट हो गए। तो हरी ने गेंद को कैच कर लिया। रजत आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। ऑन साइड पर फ्लिक और स्कूप का मिला जुला स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था उन्होंने और लेग स्टंप के आसपास की ये गेंद, हालांकि मुझे लगा कि थोड़ा सा और फाइन खेल जाते तो शायद बात बन सकती थी। मिड विकेट में फील्डर दौड़कर गेंद तक पहुंच गए। स्ट्रोक के पीछे पावर ज्यादा हालांकि वैसे भी लगा नहीं पाए क्योंकि कलाइयों का ज्यादा उपयोग किया जाता है फ्लिक में और इस प्रयास में गेंद हवा में तैरती हुई मिड विकेट क्षेत्र के फील्डर के पास गई। उन्होंने गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ कैच कर लिया। तो इस प्रकार पहले विकेट का आघात, 33 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। और ऐसे में क्या कुछ होता है उस छोर से श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर। विनायक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं दूर वाले छोर से। विनायक की गेंद श्रीनिवास को और उस छोर से बिल्कुल 30 गज के दायरे से वो दौड़ना शुरू करते हैं क्रीज के कोने से। इस बार ये गेंद थोड़ा सा पीछे हटे, गेंद को बल्ले पर आने दिया, धीरे से कट भर कर दिया गेंद को। जब तक फील्डर गली क्षेत्र में गेंद को उठा पाते श्रीनिवास ने अपना खाता खोल लिया, हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए और रन जो कि ये पहला रन रहा, 1 विकेट के नुकसान पर, 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
सारे फील्डर्स बहुत उत्साह के साथ योजना बना रहे हैं। वो जानते हैं कि वो ज़्यादा लक्ष्य बड़ा नहीं बना पाए हैं, तो आमदनी अठन्नी है तो खर्चा वो रुपया नहीं कर सकते हैं, और इस पर ध्यान देते हुए बहुत सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी चल रही है, और उसके अनुसार क्षेत्ररक्षण का फैलाव जो कि फैलाया गया है। दायरे के अंदर ऑफ साइड पर थर्ड मैन शॉट में थोड़ा सा लगभग गली फाइन रखा गया है। पॉइंट में फील्डर थोड़ा सा ढकेल कर कवर क्षेत्र में रखा गया है। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर अगर देखा जाए तो 3 खिलाड़ी दायरे को घेर कर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। बहुत बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। कमाल की गेंद इन स्विंगर थी, टप्पा खाकर थोड़ा सा उछल कर स्विंग होकर हवा में घूमती हुई तैरती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के पास आ गई, और गेंद को थोड़ा सा ऑन दी अप ऑन साइड की दिशा में खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। हालांकि वे शायद मन में ये चल रहा था कि शायद बल्ले का सिरा लेकर गेंद आई थी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शायद ना हो, और बैट्समैन बाल बाल बच गए। विकेट कीपर बार बार गेंदबाज के पास जाकर उनको समझा रहे हैं कि क्या योजना बनानी होगी। तो विनायक की गेंद रमेश को ड्राइव करना चाहते थे और बल्ले का सिरा लेकर गई एक जी नहीं। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुका है। एक्टिव रबर्स टाइम के कृपया अनिल किणी जी से अनुरोध है, वो कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइए प्लीज। अनिल किणी जी कृपया कमेंटेटर बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया जो बड़ा मंच बनाया गया है पैंथर प्रीमियर लीग का, उस मंच की और वो पधारे, वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। कृपया अनिल किणी जी अगर आप सुन रहे हैं तो जल्दी थोड़ा सा चेतन कामत और उनके साथीदार आपका इंतजार कर रहे हैं बड़े मंच के और पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर रन्स जैसा मैंने आपको बताया मात्र 1 रन 1 विकेट का नुकसान पर बन चुका है। थोड़ा सा समय फील्डर्स गेंदबाज ले रहे हैं और योजना बना रहे हैं, लेकिन श्रीनिकेत उनको समझा रहे हैं कि समय काफी निकल चुका है। इसके पश्चात एक और मैच शेष बचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा जल्दी करना होगा और आने वाले मैच में इसका असर न पड़े। और वैसे भी कल सवेरे बहुत जल्दी मैच शुरू होने वाला है। अब 12 बज चुके हैं। उस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और अंपायर ने जी हाँ वाइड का संकेत किया, घोषित किया। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। 1 रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 2 पर। 2 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट, ये गेंद फुल टॉस थी और खेलने का प्रयास नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया गया। नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन काफी आगे निकल गए, उनको लौटने का अवसर नहीं मिलेगा और आखिरकार गिल्लियां उड़ा दी गई। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। तो दूसरा विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन हालांकि थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने दिखा दी और रन चुराने के प्रयास में नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में वो पहुंच गए। हालांकि स्ट्राइक एंड का बैट्समैन उनके कॉल को देख नहीं पाया और इस तालमेल को खोने के पश्चात अवसर मिला फील्डरों को, गेंदबाजों को कि वो इस विकेट को वो प्राप्त करें। नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ, गिल्लियां उड़ गई। इसी के साथ 2 के कुल योग पर दूसरा विकेट गिर चुका है। 2 for 2। आदित्य 31 नंबर के जर्सी में गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। श्रीनिवास स्ट्राइक हैंड पर। श्रीनिवास सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो गए क्योंकि 2 विकेट्स बहुत जल्दी धराशायी हो चुके हैं। राउंड विकेट, ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, थोड़ा सा बीट हो गए और आदित्य थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। वो अंपायर को शायद थोड़ा सा दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं अपील करते हुए, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और बैट्समैन दोबारा स्ट्राइक हैंड पर तैयार हो रहे हैं। आदित्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिस तरह से गेंदबाजी में उनका पैनापन दिखाई पड़ रहा है, 2 विकेट्स बहुत जल्दी
गिर चुके हैं। एक विकेट हालांकि रनआउट के रूप में गिरा था। इस छोर से आदित्य का आक्रमण जारी। राउंड विकेट, फुल टॉस थी, फायदा पूरी तरह से नहीं उठा पाए। ऑन साइड पर गेंद को थोड़ा बल्ले का निचला हिस्सा देकर फ्लिक कर दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई। एक रन लेने का अवसर मिलेगा। मुझे लगा कि शायद वो कहीं ना कहीं गेंद को स्कूप या पुल भी कर सकते थे, लेकिन जब गेंद अचानक फुल टॉस लोअर आ जाती है तो बैट्समैन शायद इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। उन्होंने गेंद को फ्लिक कर दिया। एक रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 3 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर 3 for 2। इस छोर से ये गेंद फील्डर के दिशा में, लेकिन इसके बावजूद तेज कदमों के साथ एक और रन लेने का अवसर। 4 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 for 2। दूसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। रनों का लक्ष्य 33 और ऐसे में 2 विकेट्स अगर आपके धराशायी हुए हों तो आप अंदाजा लगाइए कि बैट्समैन पर कितना प्रेशर हो सकता है। इस छोर से कमेंटेटर बॉक्स छोर से दूर जाते हुए ये गेंद धीरे से गेंद को पुश पर कर दिया। फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, लेकिन 1 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। 5 रन स्कोर बोर्ड पर हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करता हूं 4 रन बने हुए, 5 नहीं। थोड़ा सा करेक्शन, स्कोर बोर्ड पर 5 बने, उसको 4 किया जाए कृपया। तो 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद उछालने का प्रयास, बीट हो गए, बहुत तेजी के साथ गेंद निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को उठाते हुए गिल्लियां उड़ाने का प्रयास किया। बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग ऐसा लगा कि ब्लॉक होल में गेंद गिरी और बैट्समैन को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। पूरी तरह से बीट हो गए, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेट के लाइन से थोड़ा सा बाहर रही, जिसकी वजह से वो बोल्ड नहीं हो पाए। और रन अभी भी 4 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। और हालांकि एक तरह से कहा जाए तो अगला दिन शुरू हो चुका है। 12:10 हो चुके हैं और धुंध पड़ी हुई है। फ्लड लाइट की रोशनी में साफ साफ देखा जा रहा है और घने पेड़ बिल्कुल शांत होकर दर्शक दूर दूर बैठे हुए मैच का आनंद ले रहे हैं। इस जाड़े के महीने भी क्रिकेट का उत्साह इतना ज्यादा है कि ये जो मौसम का असर उन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तीसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। अतुल स्ट्राइक एंड पर, जबकि षणमुख गेंद को लेकर दूर वाले छोर से। श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर है, माफ कीजिएगा, श्रीनिवास स्ट्राइक एंड पर। और छोर से षणमुख के गेंद को उछाल दिया बहुत जबरदस्त तरीके से हवा में, बहुत ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मिड ऑन डीप में आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। इस कैच के साथ ही एक और विकेट गिर चुका है। विकेटों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। तो श्रीनिवास का विकेट गिर चुका है। षणमुख की यह गेंद स्टंप्स के सीध पर, जिसको थोड़ा सा आक्रामक तरीके से उछालने के प्रयास में, और हालांकि बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा, लेकिन थोड़ा बॉटम हैंड का इस्तेमाल ज्यादा होते हुए गेंद हवा में ज्यादा ऊंची उठी और थोड़ा मैं समझता हूं कि शायद स्कूप का अंदाज न होता तो शायद बात बन सकती थी। गेंद हवा में तैरती हुई मिड ऑन डीप में गई, जहां पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को बहुत आसानी के साथ कैच कर लिया। हालांकि इतना आसान नहीं था, घने पेड़ दूर दूर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी शाखाएं पत्ते जो हैं वो बिल्कुल दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, उनके बीच में से गेंद जाकर फील्डर के हाथ में समा गई। तो कहने का मतलब यह है कि तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छा शानदार कैच लपक लिया गया है। उस छोर पर षणमुख योजना बना रहे हैं, सफलता को प्राप्त करने के पश्चात उनका विश्वास बढ़ा हुआ। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बाएं हाथ के बैट्समैन वैभव भट्ट आ चुके हैं। वैभव अंपायर से गार्ड लेने के पश्चात षणमुख का सामना करेंगे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए। लेग बिफोर द विकेट करार दिया गया। अंपायर ने काफी विश्वास के साथ उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए। वैभव हालांकि थोड़े से नाखुश हैं, बिल्कुल
परेशान हो गए, निराश हो गए। वो बिल्कुल अपील कर रहे हैं कि गेंद बाहर की तरफ वो निकल चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अंपायर ने काफी विश्वास के साथ उंगली को उठाते हुए संकेत किया है और मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकारना होगा क्योंकि वैसे भी क्रिकेट के कुछ नियम बनाए गए हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत जरूरी है। ये बात अलग है कि गर्मा गर्मी हो जाती है, ये इतना स्पोर्टिव खेल है, इतना जोशीला खेल है कि आप अपना सब कुछ झोंक देते हो, लेकिन अचानक कब आपके विपरीत जब नतीजा निकलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित होना बहुत लाजमी है। जी, हैट्रिक पर षणमुख गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। एक ऐसा युवा खिलाड़ी जो कि शायद आज एक नया कीर्तिमान बनाए, क्या वो हैट्रिक प्राप्त कर पाते हैं? कीर्तन स्ट्राइक एंड पर हैं। षणमुख की गेंद दूर वाले छोर से राउंड विकेट, उनकी गेंद को उछालने का प्रयास किया, बीट हो गए। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। हैट्रिक तो नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत कमाल की गेंदबाजी षणमुख कर रहे हैं। और ऐसे समय पर जब हैट्रिक का अवसर होता है तो स्टंप के लाइन पर सीध पर गेंद करनी होती है, लेकिन उन्होंने ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर कर दिया। उस छोर से गेंद प्रोफेशनल मैनर छोर से इस गेंद को जड़ से निकालते हुए ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने और मिड ऑफ में जो फील्डर थे उनके पास गेंद गई। 1 रन लेने का अवसर, रन बढ़कर 5 पर 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने का। और ऐसे में ये तीसरा ओवर जो कि इस वक्त प्रगति पर चल रहा है, इसके पश्चात 2 ओवर शेष बचे हुए हैं, तो कहना यह होगा कि यहाँ पर बैट्समैन जिस तरह से कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स के बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें काफी दबाव दिखाई पड़ता हुआ। राउंड विकेट ये गेंद और शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर अचानक तेजी के साथ उछल कर आई और उस उछाल को कवर नहीं कर पाए। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, गेंद को पुल करने के प्रयास में बल्ले का निचला सिरा लेकर हिस्सा लगकर गेंद विकेट कीपर के दिशा में गई। उन्होंने गेंद को उठा लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे को घेर कर ऑफ साइड पर हैं, 2 ऑन साइड पर हैं। ये गेंद ड्राइव किया, बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद थे वो अचानक घुटनों के बल झुककर गेंद को फील्ड करना चाहते थे और गेंद उछल कर आई और जैसे तैसे उनसे टकरा कर गेंद निकल गई और इसका मौका मिला बैट्समैन को कि वो 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा करें। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर षणमुख का ये ओवर मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। इस ओवर के समाप्ति पर ओवर की संख्या बढ़कर 3 पर 6 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति पर बन चुके हैं। 6 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 6 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रनों की दरकार। और ऐसे में बल्लेबाजों पर काफी दबाव है कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के दोनों बल्लेबाजों पर। क्या वो इन परिस्थितियों में अपनी टीम की नैया को पार लगाएंगे? अतुल शनाई स्ट्राइक एंड पर हैं। विनायक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। वो अतुल को आक्रमण गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगाए गए हैं और अतुल पर यह जिम्मेदारी है कि बचे हुए 2 ओवर्स में क्या वो अपने टीम को जीत दिलाने के लिए अपना सब कुछ झोंक सकते हैं। विनायक 77 नंबर के जर्सी में लंबे कदकाठी वाले, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर के धनी जिसे कहते हैं, वो गेंद को लेकर बिल्कुल 30 गज के दायरे के पास हमारे बिल्कुल सामने तैयार खड़े हैं और मुआयना कर रहे हैं और आश्वस्त होना चाहते हैं कि फील्डर्स अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये गेंद विनायक की गेंद अतुल को लंबी दौड़ के साथ ओवर द विकेट, इस बार उछाल दिया गेंद को हवा में, बहुत गगनचुंबी स्ट्रोक है। फील्डर गेंद के नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ कमाल का कैच। इस कैच के साथ ही एक और विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। तो रमेश ने शानदार कैच टपक लिया है और हालांकि दर्शक बड़े उत्सुक हैं। ऐसा कैच बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत अचानक जब उन्होंने गेंद को देखा और मानो अपने हाथ में जो चुंबक लगा हुआ है उसको दिखाते हुए उन्होंने चिपका लिया गेंद को और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। 5 विकेट्स गिर चुके हैं, 6 रन बन चुके हैं। बहुत दबाव की स्थिति इस वक्त कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर, लेकिन दूसरी और टीम मंगलापुरा बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का क्रम रखता है। बहुत शानदार गेंदबाजी वो कर रहे हैं।
विकेट कीपर काफी दौड़ धूप कर रहे हैं, वो बार बार आकर सलाह दे रहे हैं गेंदबाजों को कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है। ऐसी परिस्थितियों में रन्स आपके सामने जो आपने बनाए हैं, टोटल जो आपने सामने रखा है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस वजह से गेंदबाजी में पैनापन होना जरूरी है। विकेट्स वैसे भी वो 5 विकेट्स प्राप्त कर चुके हैं, तो अब मात्र गेंदों को सटीक लाइन और लेंथ में करने की आवश्यकता है। विनायक की गेंद इस छोर से हमसे दूर जाते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई है और शायद गिल्लियों को डाले गई है। इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है, बैट्समैन आउट हो गए, छठा विकेट गिरा। और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे पैंथर्स सुपर लीग 2023। कमाल की गेंद, और अक्सर हम कहते हैं गेंदबाजों की जो विशेषताएं होती हैं, और मुझे लगा कि विनायक कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो रफ्तार और स्विंग को बहुत नियंत्रण में लाकर गति और दिशा जो कहते हैं उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत अच्छी रफ्तार के साथ जब रफ्तार के गेंदबाज गेंदों को जोर देने का प्रयास करते हैं तो गेंदें दिशा से भटक जाती है। बहुत नियंत्रित गेंदबाजी बहुत कम ऐसे मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज करते हैं, और विनायक में वो देखने को मिला कि वो बहुत सटीक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद बिल्कुल ऐसा लगा कि ब्लॉक होल में ऊपर से बहुत हाई आर्म एक्शन के साथ नीचे आती हुई, बिल्कुल स्विंग होती हुई, बैट्समैन को चारों खाने चित करते हुए पैरों के बीच में से जाकर जादू भरी गेंदबाजी थी, गिल्लियों को उड़ा गई, और इसी के साथ विनायक को यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। विनायक गेंद को लेकर दोबारा तैयार हो रहे हैं, हमसे दूर जाते हुए उनकी गेंद ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, और इस बार बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ा सा पीछे हटते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया, बल्ले का निचला हिस्सा देकर गेंद को ड्राइव कर दिया, थोड़ा सा तिरछा खेल दिया, और जब तक फील्डर एक्स्ट्रा कवर डीप से गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, 2 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन पूरा कर चुके हैं। रन्स बढ़कर 8 पर 6 विकेटों के नुकसान पर, और विनायक की ये गेंद मुझे लगा कि शायद थोड़ा ज्यादा बाहर वो गेंद को कर गए, स्टंप्स की लाइन को छोड़कर दिशा से वो भटक गए, जिसकी वजह से बैट्समैन को अवसर मिला कि वो गेंद को स्ट्रोक में बदल दे। इस छोर से अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को, टप्पा खाने के बाद गुडलन थी, बहुत तेजी के साथ थोड़ा सा उछल कर हवा में झूलती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन अभी भी 8 पर 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पर है। 33 रनों का लक्ष्य, जिसमें से 8 को अगर निकाल दिया जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने रन्स बचते हैं। लगभग 25 और रनों की दरकार है, और गेंदें इस ओवर के पश्चात मुझे लगता है कि शायद 6 बची रहेंगी, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। उस छोर से गेंद, बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई, एक और नपीतुली गेंदबाजी देखने को मिली। विनायक की गेंद टप्पा खाकर थोड़ा सा ऑफ स्टंप को छोड़कर बाहर निकली, उछल कर आई, और उसको थोड़ा सा ऑन दी अप खेलने के प्रयास में मिस कर गए, पूर्वानुमान अच्छा नहीं रहा, और रन अभी भी 8 पर स्थिर है 6 विकेटों के नुकसान पर। बहुत रिलैक्स दिखाई पड़ते हैं, कोई ज्यादा दौड़ धूप, हालांकि दौड़ धूप कर जरूर रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत विश्वसनीय एक संकल्प दिखाई पड़ता है विनायक की गेंदों में। इस छोर से ये गेंद बेहतरीन गेंदों में से एक, और गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, बार बार वो गेंदों को थोड़ा सा लंबा और छोटा कर रहे हैं, इस बार ज्यादा लंबाई के साथ ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन दिशा को ज्यादा बाहर पकड़कर गेंद की थी, बीट कर गई बैट्समैन को। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है, तो 4 ओवर के समाप्ति पर 8 रन 6 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हो पैंथर सुपर लीग 2023। एक क्वेश्चन आपको बता दें, 25 रनों की दरकार, 6 गेंदें शेष बची हैं, 25 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 6 बॉल्स, 6 गेंदों में 25 रनों की दरकार। क्या संभव है, क्या आसान होगा, क्या मुमकिन होगा, क्या ये 25 रन 6 गेंदों में बन पाएंगे? लक्ष्मीश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, और उनके सामने कीर्तन प्रभु स्ट्राइक एंड पर। कीर्तन, क्या 6 गेंदों में 25 रन बनाने के काबिल हैं? क्या वो आक्रामक धुआंधार बल्लेबाजी कर पाएंगे? देखने वाली बात है। उस छोर पर गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मीश के गेंद कीर्तन को, 6 गेंदों में 25 रनों की दरकार। इस आखिरी ओवर की पहली गेंद ऑन द विकेट, उछालने का प्रयास, बीट हो गए, और कीर्तन बगैर सोचे समझे बिल्कुल गेंद के लाइन से बहुत दूर रह गए।
आड़े बल्ले से गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास किया और थ्रू द लाइन अगर खेल पाते तो शायद बात हो सकती थी उस छोर से। अगली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और इस बार वाइड घोषित किया अंपायर ने, तो एक और रन, यानी कि अभी और 24 रनों की दरकार है। लक्ष्मी थोड़ा सा शायद दिशा से भटक गए। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर लगातार 2 बार वाइड गेंद कर चुके हैं और अब फील्डर्स थोड़ा सा मुझे लगा कि परेशान हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मीश एकाग्रता को दोबारा बनाकर तैयार हो रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क से। 23 रनों की दरकार, 5 गेंदें शेष बची हैं। उस छोर से गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया, हवा में तैरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर वहां पर आ चुके हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका है। दस के कुल योग पर 7 रन, माफ कीजिएगा 10 के कुल योग पर 7 विकेट्स गिर चुके हैं और 5वां और आखिरी ओवर प्रगति पर है। उस छोर पर गेंदबाज बहुत जबरदस्त लक्ष्मीश गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर नए बैट्समैन का आगमन, आदित्य भट्ट स्ट्राइक एंड पर और 4 गेंदें शेष बची हैं अगर मैं गलत ना हूं तो। इस बार एक और शिकार प्राप्त कर लिया लक्ष्मीश ने, गेंद स्टंप्स पर जाकर गिरी, घुमाकर गेंद को खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए। 8वां विकेट गिर चुका है। तो 3 गेंदें शेष बची हैं और 23 रनों की दरकार। लक्ष्मीश जो कि हैट्रिक विकेट प्राप्त कर सकते हैं, लगातार 3 विकेट प्राप्त करने का श्रेय वो, जी हाँ, उनको अवसर है कि वो ये अवसर, माफ कीजिएगा, 3 विकेट प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अवसर क्या वो इसका लाभ उठा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लक्ष्मीश गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, 2 विकेट्स लगातार प्राप्त कर चुके हैं, 3रा विकेट क्या वो ले पाएंगे उस छोर से। उनकी गेंद नए बैट्समैन को ओवर द विकेट, मध्यम तेज रफ्तार की गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा बल्ले का, जी हां, सिरा अगर लिया होता तो निश्चित तौर पर विकेट प्राप्त हो सकता था। बैट्समैन थोड़ा सा पीछा करते हुए गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए। 2 गेंदें शेष बची हैं और अब औपचारिकता मात्र बची हुई है, जबकि लक्ष्मीश उस छोर से, प्रोफेशनल कोरियर बैनर छोर से, ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा फ्रंट फुट पर गेंद को थोड़ा सा खेलने के प्रयास में बीट हो गए। आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है, निष्कर्ष निकाला जा चुका है, लेकिन औपचारिकता जो है क्रिकेट की वो आखिरी गेंद तक सीमित रहती है। तो गेंद को लेकर उस छोर से लक्ष्मीश की गेंद ऑन साइड पर उछाल दिया, लेकिन फील्डर की दिशा में कैच कर लिए गए। 9वां विकेट गिरा और इसी के साथ इस मैच को टीम मंगलापुरा ने शानदार तरीके से जीत लिया, 22 रनों से जीत लिया। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। और कोडियाल यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देंगे, अच्छा करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उसके अलावा टीम मंगलापुरम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई के पात्र हैं। और उसके अलावा अब तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आप जानते हैं टीम मंगलापुरा की तरफ से जबरदस्त प्रयास प्रदर्शन विनायक जिन्होंने किया है। Of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288.
Thank you very much, Ajay Raji. So for, I think it's match number 16 will going to start here. And after winning the toss, captain of Veeranjanaya lead position, Veera Venkatesh Warriors elected to field first, so that opening batters of Veeranjanaya, the opening batters came into middle here. And it's definitely going to be a very important match for both the teams. Veera Venkatesh will going to win this match. They will definitely going to qualify. At the same time, the Veera Venkatesh cricketers definitely they doesn't want to lose the opportunity to qualify for the next round. And I think it's going to be a must-win match for both the teams. And the first over going to start from the commentary box. And just number 27 is brought into attack to ball the first over. And in front of him is a batter, striker, Padmanabh. First ball, and what a fantastic start here from bowler here. And straight away they wanted to put some pressure onto the umpires, but umpire is unmoved. Having such experience behind these two umpires, of course, the very youngsters standing in this last match of the day night. Shriniket and Viraj at square leg, and both umpires saying that, of course, that ball missed the bat completely. Padmanabh will going to face the next delivery. Lakshmish Baliga, one of the fantastic performer from the ball. This time pulls that one, not quite getting hold of that one properly, but ball definitely going to land it very safely between square leg and the mid wicket. Square leg and deep backward square leg, in fact, and before the fielder from a short square leg region to run back. Ample time for the Padmanabh to complete that couple of runs. With that couple of runs, they off the mark. It's not Padmanabh, it's a Pundalik. Little correction, as the Pundalik is a batter who's opened the account with a couple of runs. As Lakshmish once again with a short run up, bowling away from us. Last match of the first day. And of course, one more delivery which is bowled outside the line of off stump. Lovely delivery. Lakshmish once again bowling that line, testing the temperament of the batter in the negation. Pundalik again not really able to reach to the pitch of the delivery. Little bit movement of the feet where he was standing. Would try to reach that delivery, missed it complete. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Lakshmish again bowling away from us. Right arm over wicket he bowls. This time across the line of the delivery, swings that one, but no, again not really getting that much of enough timing in that stroke. And before the fielder from deep wicket charging into the ball, the ample time for the batter to complete the single. Vignesh is the fielder in the mid wicket. Is quickly moving to the direction of the ball, and just a single for the batter. Prajwal Shanai, I think, is the man of the match of the previous match for this team. Prajwal Shanai is a very useful cricketer for the side, and who can bat, who can bowl, and even is a very the better fielder for the side of Veeranjanaya cricketers Kapu. Both the teams, I think, out of 3 matches, they won one. Veera Venkatesh won 2 matches, in fact, and at the same time, Veeranjanaya cricketers Kapu, they won 1 and lost 1. They're playing the 3rd match. So more important for Veeranjanaya cricketers in this particular match, they desperately wanted to win the match. Drives a run, but a lack of placement. There's a fieldsman there, the extra coverage. The Vignesh Shanai is standing at short extra coverage. The fields a ball, and there's no chance at all for any run. Nice looking drive, but I think it's a lack of placement. Even though the frustration for the batter, isn't it? When you're hitting the ball pretty hard and timing the ball quite nicely, but not really getting the placement right. The frustration always for the batter. Again, lovely delivery. Lakshmi once again almost forcing the batsman to play that one off the back foot, but negotiated very well by Prajwal in delegation. Of course, putting his bat and pad together. Looks like he's got a little bit touches his front foot while pushing the ball down to short mid wicket region along with the ball. And the 4 runs which came from that low, once again Lakshmesh justifying why he's very useful bowler to bowl in the power play overs.
And again, VB cricketers, they got a very good start from the ball. After winning the toss, selected to field first. And winning the match here for VB cricketers, so definitely it's going to be wonderful to watch the VB cricketers. They have got a now definitely they are going to go golden opportunity to qualify. But Veer Venkatesh lead correction Veeranjana cricketers Kapu, after winning one match, losing one match, and they definitely wanted to win this particular match, and then it's going to be a very interesting points table, isn't it? There's some two teams also getting the 2 victory, and it's definitely going to be a net run that will go into the big role in this group. 4 on the board without loss of any wicket, and from the far end, professional career end, Suraj brought into attack. Sura got one deep long on, one a deep long off, deep extra cover. There is no cover point inside the ring, and one fielder is in a deep mid wicket position and one at deep backward square leg position. Is from the far end, professional career end, Suraj. Just hammer that one. That was a magnificent strike. Even though in this late night you can hear the sound of that stroke, absolutely it came from the middle of the bat of Prajwal. What a magnificent struck. Just a stand and delivered, isn't it? It's not that much of easy stroke to play in the books. When he was having a little bit movement of the feet, where he was standing, and look at the way that he's picking at the line and length so quickly, transferring his weight onto the back foot. And it's that one right from the middle of the bat. Absolutely glorious stroke. 10 without loss of any wicket. Suraj again from the far end. Again he pulls that one down to deep backward square leg. Division fielder down the deep backward square leg. He drops the catch. He drops the catch. I think Lakshmish is there in the deep backward square leg. He couldn't manage to complete that catch. Where he was standing, its ball came to him. Looks like in that region he's not really having enough light. It's not so easy to take the catch, isn't it? When you are not having enough light, it's very difficult to sight the ball. That's why it might be the problem for the fielder in the deep backward square leg, isn't it? He drops the catch, and Prajwal has got a life here. Can he able to capitalize that life? Definitely going to be a big miss here for VB cricketers. Missing the opportunity of getting out of a big wicket of Prajwal. This time again, now looks like it's a forearm tennis stroke there from the batter in the negation. Short whistle outside the line of off tempo, and he's just a little bit across the line, almost drags the ball from outside the line of off temp to hit that one down to deep long on region for a single, and scoreboard numbers down to 12 for the loss without loss of any wicket in the over number second in progress. Prajwal back on strike. The bowler is back on his bowling mark. Suraj bowls. Bobble him, clean him up. He one I'm talking about. Can Prajwal will going to capitalize the life he's got? But now I think Suraj, if the fielder misses the catch, but I can get the wicket by beating the stumps. Almost looks like the ball is after hitting his bat, and almost he drags the ball into the stumps, isn't it? And Prajwal's wicket is back into pavilion. 12 for the loss of one wicket. Veeranjana cricketers is a 12 for the loss of one wicket. Vignesh is a new batsman in. Vignesh G. Butt is a batter, is walking towards the middle. So far we are watching a fantastic cricket tournament in the name of the Panthers Super League 2023, which is proudly organized by Deadly Panthers, as they're completing a very successful journey of 15 years. And certainly they wanted to make that one a very memorable one. The first time we're watching that the cricket tournament, the overarm cricket tournament, which is organized by the GSB community in this particular cricket stadium, UCG cricket ground. You are witnessing one cricket tournament. It's an underarm cricket tournament. Of course, the United Trophy
which is organized in the particular cricket tournament under the leadership of Narasimha. And one cricket tournament which is played in rainy season last year, GPL Under-Arm Cricket Tournament. And VB Cricketers also organizing one cricket tournament in Padau High School Cricket Ground. And last month, one tournament is organized at Karkal, the Under-Arm Cricket Tournament, Padutirupati Trophy 2022. So now is once again the Panthers, Deadly Panthers, organizing such a wonderful cricket tournament. Is a ball is there, opportunity for VB Cricketers to make one more wicket here. And the fielder in the deep extra cover is not missing the opportunity to take the catch. The wicket number 2 is back into pavilion of Veeranjana Cricketers Kapo. It's a 12 for the loss of 2 wicket after completion of over number 2. So coming back to the tournament is organized successfully. Tank Cobra in the last month they organized one more very good tournament, an Under-Arm Cricket tournament at Padau School Ground. So some tournament is organized at Bandwal as well for the GSP community. So a lot of tournaments, opportunities provided for the GSP community talents to come and showcase. But this is the one golden opportunity, isn't it? When you're playing a UCG cricket ground, it's always going to be a dream for each and everyone to come and perform. And again, just try to grab the opportunity to showcase that talent. And thanks to once again for the Panthers, Deadly Panthers, organizing such a wonderful cricket tournament, the Over-Arm Cricket Tournament, Panthers Super League 2023. The change in bowling from the commentary box end. One more very useful bowler, Ramakrishna Kamath, and will go into bowl that third over. The man who is responsible for the first victory for VB Cricketers in the first match is bowling away from us. What a delivery. It's really interesting, isn't it? I'm very impressed with this line and length. The consistency of that line and length is definitely going to be the key behind the success, isn't it? Outstanding line and length he bowls. Always bowling out swing delivery, but he's maintaining that line and length absolutely fantastic. So Radhakrishna Kamath a little bit changing the field as a fielder from deep short extra cover coming towards backup point position. There is short turn man, short fine leg, short man wicket, deep backward square leg, deep mid wicket, deep long on and deep extra cover. Just in front of LED screen. Appeal for leg before wicket, raising his finger, absolutely flum in front of wicket. No doubt at all. The batsman is not really happy with the decision, but I think he is finding. If you go and watch before the 24/7 channel, you got a lot of time to go and watch why the umpire raising his finger, because he doesn't know where he was standing. His back foot is right in front of the middle stump, and the umpire has got no hesitation in his mind to raise his finger. Radhakrishna once again producing a very important breakthrough. It's a 12 for the loss of 3 wicket. Absolutely, it's a confident appeal, and why the confident appeal is because the batsman finding himself just right in front of the middle stump. Of course, Radhakrishna bowls some outswing delivery, but this time I think without the swing, he is looking for the delivery to the block hold of the batter, and that's why umpire has got no hesitation in mind. The new batsman in. Satyajit Prabhu is a new batter, just open the account with the single, and Ramakrishna Kamath once again back to his bowling mark. 13 for the loss of 3 wicket. Ganesh Nayak will go into face a lot of changes in the field. I requested to make it past the fielding team. It's almost 12 past 45. It's the next day. It's not a day Saturday. It's a Sunday, because the new day is already started here.
There is a mid wicket. The fielder, the one on closing fielder now. Very interesting. Ramakrishna Kamath. Oh, this time a deliberate padding. That's why the batsman is not interested, isn't it? It's a ball which is coming into the batsman, isn't it? It surprised the batsman. The batsman just thought that Ramakrishna is always bowling leg cutter. But this time a wrong one there from Ramakrishna Kamath. The ball, the in-swing delivery. And batsman completely misreading the turn of the delivery. Absolutely fantastic bowling performance here from Ramakrishna Kamath. Again, try to york the batsman. This time batsman not really able to get the placement right, as Vignesh not impressed with the effort. But I think he's asking that fielder who was standing in a backward point region to make a little bit cover the stumps so that I can try to hit the stumps for the run out. That's why he's not impressed. So 13 for the loss of 3 wickets. We wicketers so far looking pretty good in this particular match. Ramakrishna again. Bowler's back drive. Again, Ramakrishna got footwork in the decision to stop the speed of the stroke from the batter. And before the fielder from that cover point region to field the ball, enough time for the batter to complete the single. Wonderful over there from Ramakrishna Kamath. After completion of over number 3, it's a 14 for the loss of 3 wickets. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 2 ಓವರ್ನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. Vignesh Naikakal brought in the attack from the professional career end. Vignesh from the far end, right arm over the wicket, tried to cut that one away from his body. He's not really close to that line of the delivery. The batsman tried to cut that one, missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. Vignesh is a fantastic all-rounder for the side of VB cricketers. So far, I think he's fails to contribute from the bat, but every time he's in action of bowling, he's produced some very important breakthrough. This time a very in-swing delivery. Big pitch, oh, good stop there by the fielder, isn't it? And it looks like the ball will going to defeat that short fine leg fielder, but he's got a little bit Lakshmish. He's got a footwork to stop that one, and leg by call by umpire. With that leg by scoreboard numbers under 15 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Vignesh once again back to his bowling mark. From the professional career end, right arm over the wicket he bowls. This time again he tried to pull that one, not quite getting hold of that one properly. It's just a single for that, and Vignesh will not going to bother about that single. He know exactly this is the 4th over is in progress. He need to contain that boundaries or a 6 in this particular over, but definitely Veeranjana cricketers need to get some acceleration, isn't it? Vignesh bowls again, drives that one down to extra cover region. There is a fieldsman there in the deep. Good collection, good return, chance of run out, but I think the batsman went well home. Excellent running between the wicket by these two batters. And couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 18 for the loss of 3 wickets. Over number 4 in progress. Vignesh once again back to his bowling mark. The 1-2 fielders, closing fielder in the offside region, backward point and short third man. Short fine leg is short mid wicket is on the offside field. This time no ball, absolutely no ball, and rightly so. Umpire Viraj has got no hesitation in his mind to call that no ball, because as far as the new rules and regulation of the cricket is concerned, when the ball is the first bounce, if it's going to be outside the pitch, it's definitely going to be a no ball, and a no ball in the sense it's a free hit delivery for the batter. The golden opportunity here for the batter to get
some big shot here, which is badly required for Viranjana cricketers. Kapu. Vignesh, can he able to survive? This time shuffled across and he survived. But I think the batter definitely is not impressed with himself. He just missed that golden opportunity to hit the ball. The much required dotted delivery there from Vignesh. Score remains on 19 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. So even nights in the late night, we can see the interest of the players. Both the teams know exactly the importance of winning this match. Again, going for the cut shot again. The same problem is not too far away from the stumps. The magnificent over is comes to an end from Vignesh Karkal. It's a 19 for the loss of 3 wicket. Viranjana cricketers Kafu still struggling in the middle as far as getting some runs on the board is concerned. The last opportunity for them to get some acceleration. But VB cricketers so far, it's a good going in that 4 overs. The last over remaining. And wait and see which bowler will go into ball that last over. From the So from the UTC end, it's going to be a final over, and Ramakrishna Kamath, probably the best bowler to bowl the 2 overs, and it looks like the captain of VB cricketers wanted this man to bowl that last over, and wait and see how Ramakrishna Kamath will go into deliver. Bowling away from us. Right arm over the wicket he balls. Again he starts with a fantastic leg cutter. One of the best weapon, isn't it? So far in this particular tournament. Most of the bowlers bowling such kind of deliveries, which is a leg cutter. Difficult for the right-hander batsman. If you wanted to try to play the orthodox cricketing strokes, very difficult. Oh, wrong one. Wrong one. The ball is not too far away from the stumps, isn't it? And what a fantastic display of bowling performance here from Ramakrishna Kamath. And he's got a big smile in his face. Even umpire also has got a smile in his face because that ball is really coming into the batsman. And it's very difficult to judge this bowling. Again, this time he wanted to bring the palm around the legs, but nicely played that by the batter to complete that couple of runs before the fielder from deep mid-wicket region to run across this right to stop the boundary. The couple of runs, Coburn numbers under 21 for the loss of 3 wicket in the over number last is in progress. Last 3 deliveries left in their innings. Ramakrishna bowling away from us. Right arm over the wicket. Top edge against the spin. He want to hit that one. Ball will go to land it safely. But at the same time, both the batters are completed a couple of runs here. A very important couple of runs. I think the ball is in the air for a long time. But the fielder there in the extra cover and long off is almost in the boundary line. It's very difficult for them to come inside the ring. That's why the bowler himself going for the catch, but he fails to take the catch. Last 2 deliveries left in their innings. Ramakrishna bowls again, the wrong one, and they're looking for the second opportunity of run out, and is gone. Just look at that one in the replay, and he wanted to turn that one in the onside region. The fielder charging from the short fine leg region, but I want to see which fielder takes that ball. Looks like the Vignesh, Vignesh Shanai Karkal. He's completed that run out, and the wicket number 4 is back into pavilion. It's a 24 for the loss of 4 wicket. A new batsman walking towards the middle, but I think he has got only 1 deliveries to play, and definitely wanted to get maximum of 4 or a 6. But that will going to help them to get at least a fighting total. But Ramakrishna so far are looking fantastic in this over as well.
All right, a over the wickety balls. Yorker line delivery. The batsman negotiated very well to pick the single then, but they're coming back for the second, going to be a suicider. So last delivery is just a single for Sri Ramanjane cricketers. Managed to get just a 25, and they set a target of 26 for VV cricketers to win the match. I think VV cricketers captain must be pleased with the performance of their bowlers, isn't it? And it's outstanding bowling performance, especially the leading from the front, Ramakrishna. The bowled 2 very good overs for the team. And at last, Viranjana cricketers managed to get 25 and they set a target of 26 to win this match. And before the innings will go into start of VV cricketers, Warriors. Institute of Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography, and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. Dhanyawad Satish. So the last session of the day number 1 of Panthers Super League 2023 is now going to begin. 26th target for VV Warriors, and their innings now going to start. First ball lofted, and this time finds the gap as well. One bounce into the fence. And this is an absolutely a positive start for VV Warriors. This time short delivery, and he lofted that one in a style by Varun. And he and VV Warriors are off the mark with that boundary. और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. शॉर्ट गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद को पुल कर दिया था. इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए बल्लेबाज वरुण ने तो एक बार फिर से सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए विघ्नेश और वरुण फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त सामना करते हुए. तो 26 रन बनाने निर्धारित 5 ओवर में वीवी वॉरियर्स को इस बीच विजय दर्ज करने के लिए. Again, this is a clean hit. I think so. It could be gone all the way.
And after one bounce, it's crossed over the fence. So consecutive boundary for VV Warriors came from the bat of the batsman Varun. And his intentions is pretty clear. Just trying to go over the top, and he is doing the right thing. So consecutive boundaries, and the scoreboard is now moving up to 8 for the loss of 9 wicket. 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 26 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा. नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. द लास्ट मोमेंट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर. 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. अब स्ट्राइक लेते हुए दीपू, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विघ्नेश. रात के 1 बज चुके हैं इस वक्त. और आज का अंतिम मैच का अंतिम सेशन, अंतिम सत्र यहाँ पर प्रगति पर. और कुल मिलाकर 26 रन बनाने थे वीवी वॉरियर्स को जब उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी. अब उन्हें बनाने 17 रन 4.3 ओवर में. और पहली बार इस वक्त दीपू सामना करने के लिए तैयार. रफ फील्डिंग में जमावट चलते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर यहाँ पर प्रगति पर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. वीरांजनेय क्रिकेटर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन उन्होंने बनाए 4 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 5 ओवर में. रात के वक्त आमतौर पर इस मैदान पर रन्स बनाना मुश्किल होता है कुछ हद तक बल्लेबाजों के लिए. आमतौर पर कई श्रृंखलाओं में देखा गया है इस यूसीजी मैदान पर रक्षात्मक तरीके का खेल, एक्स्ट्रा बाउंस बल्लेबाज के लिए. और बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को ढकेला. शॉर्ट कवर पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है. 10 रन बिना किसी नुकसान के. It's 10 without loss in the over number first in progress. 16 more runs now they have to score for victory. It's already 1 o'clock at night. और आज का अंतिम मैच का अंतिम सेशन यहाँ पर प्रगति पर. ये गेंद इस बार straight down the ground, लेकिन can't face the gap as well. In fact, they're gone for a single. In fact, direct hit. And in fact, just we have to wait for the third umpire at this situation. तो तीसरे अंपायर के लिए मांग इस वक्त की है अंपायर श्रीनिकेत ने. और देखना यह है कि यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार लेते हैं. तो निशाना इस वक्त सीधे स्टंप्स पर पटक रहा था. और यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब निशाना स्टंप्स पर पटक रहा था तब बल्लेबाज का बल्ला बैट हवे में था या क्रीज पर लैंड हो चुका था. तो तृतीय अंपायर उस रनआउट का इस वक्त परिशीलन करते हुए. और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. He's gone. The bat was in the air at the last moment when the throw hit to the stumps at the non-striker end, and because of that he is backing to pavilion. First wicket gone for VV Warriors, and now it's 10 for the loss of 1 wicket. तो वरुण 2 चौका पारी के पहले 2 गेंदों में वो झड़ चुके थे. अब उनका विकेट यहां पर गिर चुका है. रनआउट के रूप में पेविलियन वापस. और पहला विकेट यहां पर खो चुका है वीवी वॉरियर्स 10 रनों के योग पर. लेकिन वरुण अपना किरदार इस वक्त अदा करने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए. और अब इंतजार है नंबर 3 बल्लेबाज का. सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द नंबर 3 बैट्समैन. अनिरुद्ध का आगमन एज अ नंबर 3 बैट्समैन. ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल. और यहां पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार लंबे रनअप के जरिए. ये गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी. पहले सोचा कि गेंद को स्विंग किया जाए, लेकिन गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए अंतिम क्षण में गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहा, लेकिन दोनों प्रयत्नों में सफलता उनके पक्ष में नहीं आई. डॉट गेंद. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर. It's 10 for the loss of 1 wicket after completion of first over. 17 to get in remaining 4 overs with the required run rate of exactly 4.25 runs per over. Still they got 9 wickets kept intact. 9 wickets they got in their hand. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई. और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पैंथर्स सुपर लीग 2023 अपने 15वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर 15th ईयर. डेडली पैंथर्स आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फैंटास्टिक tournament in the name of Panthers Super League 2023. And the last match of the first day of this mega tournament is now progressing here between Viranjanaya versus VV Warriors.
तो 24 गेंदों में चाहिए इस वक्त 17 रन विजय के लिए। और इस वक्त गेंदबाज वार्म अप करते हुए नया ओवर हमसे दूर वाले छोर से यानी प्रोफेशनल एंड की ओर से शुरू करते हुए संकेत कामत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अनिरुद्ध और नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद इस वक्त दीपू। तो ओवर की पहली गेंद लेकर ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಒಗ್ಗೋಗಿ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಕೊರ್ಕ. So 17 to get from 24 deliveries now. Sixteen to get, in fact, 16 to get from 24 deliveries. ये गेंद इस बार लेग कटर गेंद थी, गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा घुमाव लेते हुए इस वक्त पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में नो बॉल का इशारा। इस बीच हालांकि 6 फील्डर ऑन साइड पर इस वक्त तैनात और जहां तक सवाल है अंपायर्स का, तो सही तरीके से इस वक्त अंपायर ने यहां पर नो बॉल घोषित किया। एक ज्यादा फील्डर ऑन साइड पर तैनात और क्रिकेट के नियमानुसार 5 फील्डर ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड पर तैनात होने का मौका है। तो यहाँ पर नो बॉल का इशारा, फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए। काफी सोच विचार करने के बाद फील्डिंग में जमावट की थी लेकिन इसका कोई फल नहीं यहाँ पर उन्हें हासिल हुआ, नो बॉल हुआ। एक अतिरिक्त एक ज्यादा खिलाड़ी ऑन साइड पर उन्होंने फील्ड पर सजाई थी। इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर बोर्ड रुक चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर लेग कटर गेंद कुछ ज्यादा घुमा लेती हुई अंदर की ओर आई जरूर लेकिन सही गेंद कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। वाइड का इशारा अंपायर का। फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, ये गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, मौका पॉइंट फील्डर के लिए और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, उछाल लेते हुए गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया था, अंतिम क्षण में गेंद टॉपेज पर टकराई और गली पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरा विकेट गिर चुका है 12 रनों के योग पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। देर रात इस वक्त हो चुकी है लेकिन देर रात होने के बावजूद कुछ मात्रा में प्रेक्षक इस मैदान के दोनों ओर मौजूद खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए और इस पैंथर्स सुपर लीग 2023-2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला का 16वां और अंतिम मैच 16th एंड लास्ट मैच ऑफ द डे, वन ऑफ पैंथर्स प्रीमियर पैंथर सुपर लीग 2023 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। कल 12 मैचेस खेले जाएंगे, 2 लीग दौर के मैचेस और उसके बाद हर ग्रुप से 2-2 टीमें अगले दौर पर प्रवेश प्राप्त करेंगी। 2 अग्रस्थानी टीमें 3 ग्रुप से कुल मिलाकर 6 टीमें अगले दौर पर प्रवेश प्राप्त करेंगे और उन 6 टीमों के बीच 2 गुटों में 6 टीमों को बांट दिया जाएगा 2 गुटों में। द 6 टीम्स डिवाइडेड इन ए 2 ग्रुप और हर ग्रुप में 3 टीमें होंगी और हर टीम को 2 मैच खेलना होगा और उसके बाद प्ले ऑफ मैचेस खेले जाएंगे 4 अग्रस्थानी टीमों के बीच में और उसके बाद कल रात को 8 बजे यहां पर इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच खेला जाएगा। खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त लेकिन रोका गया इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर। 1 रन का इजाफा, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो कल रात को टुमारो नाइट exactly 8 p.m. the final match will going to begin and we are just waiting for the grand finale match of tomorrow night 8 p.m. और देखते हैं कौन सी टीम इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करती है। तो इस वक्त 13 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए। अंतिम क्षण में गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक डिविएट होती हुई बाहर की ओर निकली और आखिरकार रन्स बल्लेबाज को इस गेंद पर नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है, ये गेंद इस बार कट किया, गेंद के टर्न को पहचानते हुए एनफील्ड क्लियर करते हुए स्कूप कर दिया इस वक्त और गेंद डीप कवर पॉइंट पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद रोकी जाए फील्डर द्वारा। बल्लेबाज के पास मौका था तीसरा रन प्राप्त करने का।
ऐसा कहना पड़ेगा, पंजों पर उछालते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था खूबसूरती के साथ पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से, और 3 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट and a second over in progress. They are looking in a good situation now for VV Warriors. Still 10 runs more. Now they have to score for victory in remaining 19 deliveries, and the equation seems to be much easier now for them. गेंदबाज ये गेंद उछाला मिड ऑफ पर, और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर नहीं, गेंद को अंदर रोका गया है। जाते जाते इस वक्त गेंद को रोका गया सीमा रेखा के अंदर, और बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 overs had been bowled, just 8 to get from 3 overs, and the asking run rate is now coming down to exactly 2.66 runs per over. तो अब ऐसा कहना पड़ेगा वीरांजनेय क्रिकेटर्स को सिर्फ चमत्कारी गेंदबाजी ही अब इस मैच में वापस ला सकती है। मैजिकल बॉलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस मैजिकल बॉलिंग चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज प्रज्वल, जो कि नया ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए 8 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल अब बाकी है। 8 runs to get from 3 deliveries, 3 overs in fact. दीपक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, और नया ओवर यहां पर शुरू होता हुआ वीवी वॉरियर्स की पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 18 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की दरकार इस वक्त वीवी वॉरियर्स को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए। तो वीवी वॉरियर्स इससे पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले, दोनों में उन्होंने विजय दर्ज किया। अगर इस मैच में भी वो विजय दर्ज करते हैं तो इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाएं उज्जवल हो जाएंगी। यह गेंद इस बार कट करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 17 गेंदें बाकी हैं, 8 रन चाहिए। 8 to get from 17 balls now. रात के 1:15 यहाँ पर बच चुके। इट्स ऑलरेडी 15 past 1 एट मिडनाइट। और एक बार फिर से गेंदबाज, यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन मैं समझता हूं वहां पर फील्डर कोई मौजूद थे और यहां पर इस कैच को उन्होंने लपक लिया सीमा रेखा के अंदर। तो विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। तो वहां पर फील्डर मौजूद थे तो उन्होंने कैच को बाखूबी लपक लिया सीमा रेखा के अंदर। देखिए किस तरीके से यहां पर कैच को लपका था सीमा रेखा के अंदर। और अब 8 रन अभी भी चाहिए, 16 गेंदें बाकी। 8 to get now from remaining 16 deliveries. Vignesh, the number 5 batsman, is now coming out to the middle. Eight runs to get from 16 deliveries. और पिछले गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आती हुई वीवी वॉरियर्स। और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज प्रज्वल, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। और गेंदबाज प्रज्वल इस वक्त तैयार। विघ्नेश शनय नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करते हुए प्रज्वल की गेंदों का। यह गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके बल्लेबाज के साथ साथ, लेकिन गेंद को बैकअप किया गया इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक गेंद और व्यर्थ। 1 more dot ball bowled. The scoreboard stays at 18 for the loss of 3 wickets. 15 balls to go. Still 8 runs more they have to score for victory. तो इस वक्त प्रज्वल अपने अगली गेंद लेकर तैयार था। इन ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ विजय के अति निकट यहां पर हो चुका है वीवी वॉरियर्स। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त
विघ्नेश के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा. जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन स्टाइल ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर अ ह्यूज वन. 6 into the account of Vignesh and 6 into the account of VV Warriors. Just 2 runs now they have to score for victory. Here he comes, Prajwal. रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 13 गेंदें बाकी हैं, सिर्फ 2 रन चाहिए विजय के लिए. और ऐसा कहना पड़ेगा वीवी वॉरियर्स अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है. प्रज्वल इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर. प्रज्वल बाउल्स दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, नो बॉल का इशारा, लाइन के बाहर गेंद टिप्पा खाई थी और फ्री हिट. और इसी के साथ नाउ द स्कोर्स आर लेवल्ड. जस्ट अ सिंगल रन. वीवी वॉरियर्स हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एंड बैक द कंप्लीट पॉइंट्स. तो प्रज्वल इस ओवर में अंतिम बार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फ्री हिट गेंद, फटकी हुई गेंद, उछालना चाहा चूके. और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है. 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. 3 overs completed, 2 overs to go and just a single run they have to score for victory with the required rate of exactly 0.50 runs per over. ठीक आधा रन प्रति ओवर के औसत से 1 रन इस वक्त बनाने बचे हुए 2 ओवर में. और इस वक्त यकीन के साथ कहना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गए. जस्ट फॉर्मेलिटीज रिमेनिंग इन दिस मैच. तो इस वक्त चौथा ओवर प्रारंभ करते हुए प्रोफेशनल एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए विघ्नेश भट्ट. और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बालाकृष्णा. सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए. लगभग सारे फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. और ओवर की पहली गेंद लेकर विघ्नेश तैयार, बालाकृष्णा इस वक्त सामना करते हुए. Here the first ball comes. Just a single required for VV Warriors to register their 3rd consecutive victory in this tournament. Cut away. This time down to a 3rd man. Gone through for a single and this time directly shines is gone. और इस बार विकेट गिर चुका है. तो अभी भी 1 रन बनाने हैं विजय के लिए और 11 गेंदें यहां पर बाकी है. सीधा थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और ये रनआउट के रूप में विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 4 डाउन. It's 25 for 4. The scoreboard stays at 1 still required in remaining 11 balls. We're just waiting for the number 6 batsman for VV Warriors. श्रीनिवास नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. विघ्नेश की गेंदों का सिर्फ 1 रन चाहिए 11 गेंदों में. तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट करने के बाद गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. नए बल्लेबाज सामना करते हुए यह गेंद चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में. इट जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन दिस टाइम, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली एंड कलेक्टेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. अभी भी 1 रन की जरूरत है 10 गेंदों में. और गेंदबाज विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार श्रीनिवास के लिए.
inside it, down to fine leg, एक बार फिर से मौका लेकिन इस बार मिसफील्ड. और इसी के साथ VV Warriors registered their third consecutive victory in this tournament and they bagged the complete points against Viranjanaya Cricketers. So all 16 matches of today is now ended and just 2 matches in a league stage remaining, and that 2 matches of league stage will play on tomorrow morning. The first match starts at exactly 9 a.m. on the morning. Till then we are saying you right from here goodbye and good night for all the cricket lovers. Thank you. Dhanyavad. Creative Art. Get diploma in animation, VFX, video editing, filmmaking, graphic and web design, photography and interior designing at affordable fees, and also get placement assistance. Admissions open. Sika C Institute of Creative Art at 3rd floor, Sanu Palace, PVS Circle, Bangalore. Call 0824 425 2288. आम्ही एक अपेक्षा करत असायची. धन्यवाद. पाय सुरू आहे मॅच 9 गंटे स्टार्ट जाता असं एक्झॅक्ट 9 वाजता. तेच मी तिनं कंचेल डिले करणं तशी पुरजनांनी सहकार देऊ का म्हणून विनंती. पायी 2 लीग मॅच वरलेला मी करता असायची. त्यानंतर लॉर्ड्स एक अंदाज एक 10 म्हणताना मी लॉर्ड्स करता असायची सेकंड राऊंड आका.